خالہ نے اسی رشتے والی سے رابطہ کیا تھا جس نے دریافت اور مائرہ کا رشتہ بتایا تھا، لیکن لڑکی کی تصویر نہیں دکھائی تھی۔ ہاں، تعریف بہت کی تھی۔ پہلے اکمل صاحب ہی نوفل کو اس کے آفس میں ملنے گئے تھے۔ ہر لحاظ سے انہیں ٹھیک ہی لگا تھا۔ یہی سوچا تھا کہ عفیرہ کے ساتھ عبیرہ کی ذمہ داری سے سب دوش ہو جائیں گے، لیکن نوفل نے صاف اپنی مجبوری بتائی تھی اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی بھابھی اور بھتیجیوں کی کفالت کا ذمہ دار ہے، اس لیے الگ کبھی نہیں رہے گا۔ چھوٹی سی فیملی تھی، اکمل صاحب کو اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، پھر نہ جہیز نہ بارات کا خرچہ، بس سادگی سے شادی۔ انہیں کیا چاہیے تھا؟ پھر عبیرہ کا مزاج بھی عفیرہ سے برعکس تھا، زیادہ تر گھر وہی سنبھالتی تھی، چھوٹے بھائیوں کا بھی خیال رکھتی تھی، تھوڑے پر بھی راضی ہو جاتی تھی۔ آبدہ بیگم لڑکے تعریفیں میاں کے منہ سے سن کر بڑی خوش تھیں، لیکن عفیرہ نے آنن فانن جو ڈرامہ رچا ہے وہ بوکھلا کر رہ گئی تھی۔ میں ہفتے والے دن نکاح کا جوڑا اور باقی چیزیں دے جاؤں گی۔ ہمارے یہاں نکاح کا جوڑا لڑکے والوں کی طرف کا ہوتا ہے، اتوار کو ہم لوگ صرف 10-12 لوگ ہی نکاح کے لیے آئیں گے۔ مائرہ کی ساری باتیں آبدہ بیگم غائب دماغی سے سن رہی تھی، بس ایک ٹکے عفیرہ کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اگر یہ خبر زیان کے کانوں میں پڑ بھی گئی تو وہ تو طوفان کھڑا کر دے گا۔ 5 سال سے بیٹی اس لڑکے کو محبت کے نام پر بہت کوٹ چکی تھی، اب 3 ماہ میں شادی تھی اس کی۔ آبدہ بیگم کا دل ڈوب رہا تھا، لیکن بڑی بیٹی مطمئن بیٹھی تھی، کمال کی اداکارہ تھی، یوں شرما جا رہی تھی جیسے شرم و حیا اس کے مزاج ایک حصہ ہو۔ مائرہ نے 50,000 کیش بھی اس کے ہاتھ میں رکھے، اپنی مرضی سے جو چاہے لے لینا۔ عفیرہ نے اپنی لالچ سے چمکتی آنکھوں سے اپنی ہتھیلی نوٹوں سے بھری دیکھی تھی۔ مائرہ آبدہ بیگم کے گلے مل کر مبارکباد دے کر خالہ کے ساتھ جا چکی تھی۔ ان کے جاتے ہی عفیرہ نے سکون کی گہری سانس لی اور بیزاری سے دوپٹہ سر سے اتار کر گلے میں لیا۔ اف، دم گھٹنے لگتا ہے یوں دوپٹہ لپیٹ کر، پتہ نہیں یہ نوفل کی بھابھی یوں اپنا آپ لپیٹ چپیٹ کر سانس کیسے لیتی ہیں۔ عفیرہ تو یوں بے تکلف ہو کر اور نام کر رہی تھی جیسے پہلے کی شناسائی ہو۔ عبدہ بیگم بیٹی کے لمحہ لمحہ بدلتے روپ دیکھ کر تنگ رہ گئی تھی، کیا چیز تھی وہ؟ وہ اٹھ کر عفیرہ کے پاس بیٹھ گئی۔ عفیرہ ہاتھ میں پہنی انگوٹھی بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے فی؟ مجھے کیا پتا تھا اماں کہ یہ لوگ مجھے دیکھ کر لٹو ہو جائیں گے، یوں ہاتھ میں سر جما لیں گے۔ خیر اب جو ہونا تھا ہو گیا ہے۔ عفیرہ کے مدفعانہ انداز پر آبدہ بیگم کا پارا ہائی ہوا تھا۔ تمہیں اتنا آسان لگ رہا ہے یہ سب؟ زیان کو خبر ہوگی تو طوفان کھڑا کر دے گا، اسے بتائے گا کون؟ اماں کناتے شمیانے تو لگنے نہیں ہے باہر گلی میں، اور کوئی ضرورت نہیں ہے محلے کے غریب غربا کو میرے نکاح پر بلانے کی، جب کوئی آئے گا ہی نہیں تو زیان کو بھی خبر نہیں ہوگی۔ شادی ہو جائے گی تو کیا بگاڑ لے گا؟ میرے پہ غصہ ہی کرے گا نا، بعد میں خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ عفیرہ کے لیے تو کوئی بھی بات بڑی تھی ہی نہیں۔ اور تیرے ابا، انہیں میں کیا جواب دوں گی؟ اوہو اماں، کیوں مجھے پریشان کری؟ کہہ دینا عبیرہ جانے کو تیار نہیں تھی، انکار کر رہی تھی رشتے سے۔ میں نے تو عزت رکھنی چاہی تھی، مجھے کیا پتا تھا یہ سب ہو جائے گا۔ اب جو ہو گیا اسی میں ابا کی بھی عزت ہے۔ وہ جھنجھلا کر بولی اور وہاں سے چلی گئی۔ عبیرہ نے جب خبر سنی تو کچھ پر تو حیرت سے آنکھیں پھاڑے عفیرہ کو دیکھ رہی تھی۔ اب یہ تم نے انکار کیوں نہیں کیا؟ کیسی بڈھے کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہو؟ اور زیان بھائی کا کیا ہوا؟ کیا ضرورت تھی اپنی محبت کی یوں قربانی دینے کی؟ عبیرہ بہن کی عیاری سے انجان دل میں اس کے لیے ہمدردی محسوس کر رہی تھی، اور عفیرہ بہن کی بے وقوفی پر دل میں کہک لگا رہی تھی۔ اکمل صاحب کو تو آبدہ کی باتیں سن کر سر پکڑ کر رہ گئے تھے۔ عبیرہ سے اس قسم حمایت کی امید انہیں نہیں تھی، وہ تو ہر بات پہ جی کہنے والی لڑکی تھی، لیکن یہ سب تو بہت بڑی گڑبڑ سی ہو گئی ہے۔ زیان کے گھر والوں کو کیا جواب دیں گے ہم؟ فی الحال تو چپ رہتے ہیں، شادی ہو جائیں پھر کہہ دیں گے مجبوراً کرنا پڑا۔ آبدہ بیگم بیتوکی بات پر وہ ہتے سے اکھڑے تھے۔ کیا اہم کانا سا جواز ہے آبدہ بیگم؟ ارے عبیرہ تیار نہیں تھی تو مجھے فون پہ کیوں اطلاع نہیں دی گئی؟ اگر زیادہ ہی مسئلہ تھا تو ان لوگوں سے معذرت کر لیتے، بات ختم ہو جاتی، لیکن تم نے تو وہ کیا کہ میں چکرا کر رہ گیا ہوں۔ 4 دن بعد نکاح کے لیے وہ لوگ پہنچ جائیں گے، جاہل عورت، کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا مجھے تم نے۔ اکمل صاحب تو اپنا سر پیٹ کے رہ گئے تھے۔ آبدہ بیگم نے ساری بات خود پر لی تھی، عفیرہ اسکول نہیں جا رہی تھی، بس یہی بہانہ بنا دیا کہ بیمار ہے۔ زیان کی کال بھی نہیں اٹھا رہی تھی، 4 دن ہی تھے، لیکن عفیرہ کی بے صبری کا یہ عالم تھا کہ 4 دن کٹے نہیں کٹ رہے تھے، بس نوفل کا چہرہ آنکھوں کے سامنے تھا اور وہ 15 لاکھ گاڑی
मारिया ज़्यादा वक़्त अब कमरे में रहने लगी थी, दवाएँ वक़्त लेने लगी थी। अब तो मज़र से भी ज़िद नहीं करती थी कि वो उसके पास रहे, इसे खुद आफ़रीन के पास भेज देती थी। कभी आफ़रीन से सामना हो भी जाता तो उसे देखते ही घबरा कर बदल जाती थी। आफ़रीन को उसका लड़ना, जुनून में आना तो समझ में आता था कि एक सौतन को बर्दाश्त करना किसी भी औरत के लिए आसान नहीं होता, लेकिन आलिया का आफ़रीन से घबराना, पीछे हटना, खौफ खाना समझ से बाहर था। आफ़रीन मारिया के कमरे में आगे अंदर आकर दरवाज़ा भी बंद कर लिया और लॉक भी कर दिया। आफ़रीन के हाथ में एक एल्बम थी, बहुत एहमाक से देख रही थी, मुस्कुराती थी। मारिया इन तस्वीर से बातें करने में यूँ मगन थी जैसे किसी छोटे बच्चे के लाड उठा रही हो। आफ़रीन की आमद से वो बेखबर थी, एल्बम से बातें कर रही थी। जब तुम आ जाओगे तो देखना, मैं इस दिन जश्न मनाऊँगी, बहुत बड़ी दावत करूँगी। तुम्हें पता है अबान, मेरे वार्डरोब में अभी भी तुम्हारे कपड़े हैंग हैं। मैं तुम्हें वो सब बारी-बारी बनाऊँगी। तुम मुझसे खौफ़ तो नहीं खाओगे ना? मुझे देखकर डर के भागोगे तो नहीं ना? ये कहते हुए मारिया के आप चेहरे पे खौफ के असरात थे, फिर खुद ही मुस्कुराने लगी। तुम मुझसे क्यों घबराओगे? मैं तो तुम्हारी सगी माँ हूँ। तुम तो बहुत प्यार करोगे। जब से वो दूसरे बच्चे हैं अबान, वो मुझे देखकर छुप जाते हैं। मैं सिर्फ़ इन्हें पकड़ कर प्यार करती थी, लेकिन इनकी माँ मुझसे अपने बच्चे छीन कर दूर ले जाती थी। कहती तो तुम डायन हो, अपने बच्चे खा गई हो, हमारे बच्चे पे अपना साया मत डालो। वो भी तुम्हारी नहुवत से मर जाएँगे। मेरा क्या कसूर था अबान, अगर 4 माह बाद मुझे बे-औलादी का गम मिल जाता है। मैं माँस तो नहीं थी, मुझे औलाद दी थी मेरे रब ने, लेकिन बस 4 माह तक मैंने ममता को अपने अंदर वजूद में महसूस किया। फिर ये कहकर वो रोने लगी। आफ़रीन के लिए ये एक नया इंकिशाफ़ था। वो वांछनी थी, फिर मज़र ने इसे क्यों छुपाया? वो चलते हुए मारिया के सामने बैठ गई। मारिया ने आँसू साफ़ करके सामने देखा तो आफ़रीन बैठी थी। वो घबरा कर पीछे हटी, एल्बम भी फ़ौरन से बंद कर दी। क्यों आई हो यहाँ? मैंने मना किया था ना तुमसे, मेरे पास मत आया करो, दूर-दूर रहो मुझसे। मेरा साया भी तुम पर पड़ गया तो मेरा बच्चा मर जाएगा। लेकिन जब आफ़रीन को यूँ बैठे देखा तो खुद उठकर खड़ी हो गई। सामने खड़ी खिड़की से जा लगी, बुरी तरह से घबराई हुई थी। तुम्हारा भी वही बच्चा है आफ़रीन? कैसी माँ हो तुम? अपने बच्चे की ज़िंदगी से प्यार नहीं है क्या? मारिया की रंगत सफ़ेद पड़ गई थी, जैसे अभी कुछ अनहोनी हो जाएगी। क्यों मारिया, मुझे क्या हो जाएगा अगर मैं आपके पास आ जाऊँगी? ना मुझे कुछ होगा, ना मेरे बच्चे को। सब मनगढ़ंत बातें हैं। अगर मेरे नसीब में औलाद है, हर हाल में दुनिया में आएगी, अगर नहीं है तो कोई ताकत इसे दुनिया में नहीं ला सकती। ये कहकर वो खड़ी हो गई। फिर भी दूर रहो मुझसे, जाओ अपने कमरे में। मेरा साया भी तुम पर पड़ना ठीक नहीं है। मारिया दीवार के साथ चिपक सी गई थी, खौफ़ज़दा थी। आफ़रीन के इसके पास आके इसका बाजू पकड़कर खींचकर इसे अपने गले से लगा लिया। मुझे देखना है मारिया के साये में क्या नुकसान देता है। मारिया एकदम से आफ़रीन से पीछे हटी थी, रोने लग गई थी। तुम पागल हो क्या? क्या किया तुमने? तुमने मेरे बच्चे पर मेरी नहुसत डाल दी। आफ़रीन मार डाला इसे। क्यों किया ऐसा? बोलो क्यों किया तुमने ऐसा? वो चिल्लाते हुए रोने लगी। कमरे के दरवाज़े में बड़ी ज़ोर की दस्तक हुई थी। मारिया, दरवाज़ा खोलो, लॉक क्यों है? बाहर मज़र की आवाज़ थी। आफ़रीन वहीं खड़ी रही। दरवाज़ा मारिया ने भागकर खोला था। मज़र को देखकर इसके साथ रोने लगी। मज़र, ये मार दी मेरे बच्चे को। मैंने कहा था ना इसके पूँछ से दूर रहो, मेरे साये से दूर रहो, लेकिन ये जानबूझकर मज़र, ये जानबूझकर मेरे गले लग गई। वो मज़र का चेहरा दोनों हाथों में लिए बेतहाशा रो रही थी, जैसे न जाने क्या कर बैठी हो। मज़र, अब वो मर जाएगा, देख लेना, मेरा अबान मर जाएगा, ये अच्छी नहीं है। ये मेरे मेरे बच्चे को मार डाला इसने। मज़र का चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ था। मारिया को छोड़े वो आफ़रीन के पास आया था। क्यों आई हो इसके पास? वो चिल्लाकर बोला था। मज़र, मैं मारिया का वहम दूर करना चाहती हूँ। ओह यू ब्लडी! बाकी की गाली वो मुँह में दबा गया था। अगर वो इस हालत में ना होती तो शायद घसीटता हुआ कमरे से बाहर लेकर जाता, लेकिन इस वक़्त बेबस था। इसका हाथ पकड़े धीरे से चलता हुआ इसे कमरे से निकल कर अपने कमरे में ले गया। सारा गुस्सा दरवाज़े पर निकाला था। जब वो तुमसे कह रही है कि इसे दूर रहो, तो क्या उर्दू समझ नहीं आती तुम्हें? वो गुस्से से कराया था। आफ़रीन को इस बार मज़र का गुस्सा बेबुनियाद लगा था। मज़र, मारिया एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी में मुब्तला है, और मुझे लगता है यही इसकी बीमारी की वजह है। शट अप आफ़रीन, क्या हो गया? तुम साइकोलॉजिस्ट हो? क्या हुआ है मारिया के साथ? क्या मसला तुम नहीं जानती? इसके करीब भी क्यों गई थी तुम? वो भी इस हालत में? आफ़रीन, अगर इस वजह से मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो? वो उँगली उठाकर वो लहू-रंग आँखों से इसे देखकर लफ्ज़ों को चबा-चबा कर कह रहा था जिसे गुस्सा सबसे बाहर हो। आफ़रीन को यकीन नहीं आता कि मारिया जैसी सोच मज़र की भी हो सकती है। मज़र, आप इस तरह की बेबुनियाद बातों को सच मानते हैं? बेबुनियाद बातें? मज़र ने गुस्से से धारते हुए कहा। मेरे सामने ज़िंदा मिसाल मौजूद है, जैसे तुम बेबुनियाद बातें कह रही हो, इसे मैंने और मारिया ने सहा है। मज़र का बस नहीं चल रहा था कि केस ना कर क
کس طرح نہ گزارے اس کے ساتھ۔ مگر آپ کی سوچ پر افسوس ہو رہا ہے مجھے، آفرین نے تعجب سے اسے دیکھ کر کہا تھا۔ اتنا ویل ایجوکیٹڈ اور بزنس مین ہو کر بھی ان فرسودہ باتوں پر یقین رکھتا تھا۔ آفرین مجھے اس وقت بحث نہیں چاہیے، چلو میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہ اس کا ہاتھ پکڑے نیچے لے گیا۔ باہر پورچ میں گاڑی کھڑی کا لاک کھول کر پہلے آفرین کو بٹھایا، پھر خود بیٹھ گیا۔ گاڑی مختلف راستوں سے ہوئی ایک چھوٹی سی بستی کے اندر جانے لگی، پھر تنگ گلیوں سے ہوتی ایک چھوٹے سے مکان کے سامنے رکی تھی۔ اترو نیچے، مظہر نے اسے سخت لہجے سے کہا تھا۔ مظہر یہ کون سی جگہ ہے؟ او پلیز سوال مت کرو مجھ سے، وہ غصے سے بولا تھا۔ آفرین نیچے اتر گئی۔ مظہر کے ساتھ ہی اندر داخل ہوئی تو ایک بھاری سی جسامت کی عورت سامنے بیٹھی تھی، بس آدھے سر ہی دوپٹہ اڑا ہوا تھا، بال کھلے ہوئے تھے اور دونوں جانب سے آگے کو کور کر رکھے تھے، آنکھیں بند کے کچھ پڑھ رہی تھی۔ سامنے بیٹھی دو خواتین ہاتھ جوڑے سر جھکائے اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ پاک بی بی، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ مظہر دروازے کے باہر ہی کھڑا ہو کر بولا۔ اس 55 سالہ عورت نے اپنی چیل جیسی آنکھیں کھولی تھی، مظہر کو بس ایک نظر دیکھا، پھر آفرین کو سر سے پیر تک دیکھا، پھر آنکھیں بند کر کے تسبیح کے دانے تیزی سے گرنے لگے، ہونٹوں کی چنبش تیز ہوئی تھی، پھر آنکھیں کھول کر سامنے بیٹھی دونوں عورتوں کے سر اس عورت نے ہاتھ رکھا۔ جاؤ اب یہاں سے، بامراد ہو چکی ہو تم دونوں، اللہ شہادت کی انگلی اس عورت نے اوپر کی جانب کی۔ وہ دونوں عورتیں اس عورت کا ہاتھ چومتے ہوئے کھڑی ہو کر اور اس کمرے سے باہر نکل گئی۔ اندر آؤ بچے، اس عورت نے ایک نظر مظہر پر ڈال کر کہا۔ وہ آفرین کا ہاتھ پکڑے اندر داخل ہوا تھا، دوزانے ہو کر اس عورت کے سامنے بیٹھ گیا۔ آفرین کو بھی مجبوراً بیٹھنا پڑا۔ ایک نظر پھر اس عورت نے آفرین پر ڈالی۔ یہ تیری دوسری جورو بیوی ہے؟ ایک ابرو اچکا کر اس نے مظہر سے دریافت کیا۔ جی، مظہر نے بڑے باادب لہجے میں جواب دیا تھا۔ اس عورت نے تسبیح کے دانے پھر سے گھمانے شروع کیے۔ میں نے جو تعویذ دیے تھے، پلا دیے تھے، اپنی جورو کو ناغہ تو نہیں کیا تھا نا؟ آنکھیں بند کیے وہ مظہر سے پوچھ رہی تھی۔ آفرین ہکا بکا دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں پلا دیے تھے، کوئی ناغہ نہیں کیا۔ مظہر کی بات آفرین کو شدت میں ڈال دی گئی تھی۔ کیا تھا وہ شخص؟ تسبیح کا ایک چکر 1 منٹ سے پہلے پورا ہوا تھا۔ وہ ایک غلطی ہو گئی ہے اس سے، یہ ماریا کے قریب نہ غلطی نہیں ہوئی ہے، وہ بند آنکھوں سے بلند لہجے سے بولی تھی۔ مظہر آدھی بات پر چپ ہوا تھا، خود گئی تھی یہ اس کے بعد۔ یہ بات سن کر مظہر نے غصے سے آفرین کو دیکھا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی، پھر چند تعویذ دے اسے اور دیے۔ ویسے تو بڑی ضدی ہے تیری یہ جورو، مانے گی نہیں، لیکن یہ پلا دینا اسے۔ ایک ناپسندگی سی نظر اس عورت نے آفرین پر ڈالی تھی، ایسی ایک نظر مظہر نے بھی اس پر ڈالی تھی۔ بڑی مشکل ہے کہ تیرا بچہ بچ جائے، اب جا، حق اللہ ہو۔ ویسے اس عورت نے دوبارہ سے شہادت کی انگلی اوپر کو اٹھائی، پھر اپنا ہاتھ آفرین کے سامنے کیا کہ اس کے ہاتھ کا بوسہ لے۔ آفرین کھڑی ہو گئی، مظہر نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ آفرین بیٹھو ادھر اور احترام سے بوسہ لو پاک بی بی کا، دبے لہجے میں آنکھیں دکھاتے ہوئے مظہر نے آفرین سے کہا، لیکن وہ باہر جا چکی تھی۔ اس عورت نے آنکھیں کھولی۔ کہا تھا نا میں نے کہ بڑی ضدی ہے، نہیں مانے گی۔ وہ عورت غصے سے بولی۔ بے مراد رہے گی، بے مراد رہے گی، بلند لہجے سے بولی تھی۔ مظہر کا چہرہ متغیر ہوا تھا۔ شیزا کی کچھ دنوں سے طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ہلکا سا بخار بھی تھا، لیکن پھر بھی کچن میں کام کرنے میں مصروف تھی۔ آج زرش کو کچھ لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے تھے، اس لیے ایک لمبا چوڑا مینو اس کی ساس نے اس کے سامنے رکھا تھا۔ شام تک وہ سب کچھ تیار کر چکی تھی، تھک ہار کر اپنے کمرے میں گئی تھی کہ مہمانوں کی آمد کا شور ہوا تھا، لیکن اسے اندر جانے سے دور کر دیا گیا تھا، اس لیے تیار بھی نہیں ہوتی۔ کچھ دیر ستانے کے لیے بیڈ پر لیٹ گئی، ابھی آنکھ ہی لگی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ شیزا نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو ساس کے ہمراہ ایک اجنبی خاتون بھی تھی، شاید زرش کو دیکھنے آئی تھی، لیکن اس کے کمرے میں کیوں آ گئی یہ شیزا کی سمجھ سے باہر تھا۔ یہ ہے میری بہو، ساس نے بڑی ناگواری سے تعارف کروایا تھا۔ شیزا اسی کے گھر کے عام لباس میں تھی، کیونکہ اسے اجازت نہیں تھی کہ مہمانوں کے سامنے آئے یا تیار ہو۔ شکل سے تو ماشاءاللہ بڑی پیاری ہے، لیکن حلیہ بہو والا نہیں لگتا۔ خاتون خاصی تیز تھی، ایک نظر اس کے لباس پر ڈال کر بولی، اسے تو عادت ہے، گھر میں سجی سوری رہے گی اور مہمانوں کے سامنے یوں ظاہر کرے گی جیسے ہم پرواہ نہیں کرتے۔ صبح تو کمرے میں لیٹی ہوئی ہے، آج کل کی بہویں کام ہی کہاں کرتی ہیں۔ میری زرنی سے صبح سے کچن میں مصروف ہے، یہ نہ ہو کہ زند کا ہاتھ ہی بٹا دیں۔ ساس کی گلفشانیاں وہ چپ کر کے سن رہی تھی۔ ہاں، خوش شکل لڑکیوں کے بڑے نخرے ہیں، آپ کی بیٹی کے ہاتھ میں جیسے جادو ہے، ہر چیز لاجواب بنائی ہے اس نے۔ وہ خاتون بھی شیزا کے لیے خیالات بدل چکی تھی، کمرے سے باہر نکل گئی۔ کمرے سے نکلتے ہی ساس نے یوں شیزا کو دیکھا جیسے واقعی وہ جان بوجھ کر اس حلیے میں بیٹھی تھی۔ دونوں ہی باہر چلی گئی، شیزا خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اچھی قسمت کے لیے اچھی شکل کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، بدنصیبی تو جس کو بھی لگا جاتی ہے۔
اپنی بے بسی سے اسے رونا آیا تھا، کیا قصور تھا اس کا، اس کی بات کس بات کی سزا کاٹ رہی تھی۔ شادی سے ایک دن پہلے ماہرہ نکاح کا جوڑا اور باقی سامان افیرہ کے گھر دینے گئی تھی۔ اس بات زنیرہ بھی ساتھ تھی۔ چائے اچھا اہتمام آفتاب بیگم نے کیا تھا۔ چائے بہت خوشگوار ماحول میں پی گئی تھی۔ جب ماہرہ نے جانے کی اجازت مانگی تو آفتاب بیگم نے جھجکتے ہوئے بات شروع کی، بہن اگر برا نہ مانے تو کچھ گزارش کرنی ہے تم سے۔ جی کہیے، کیا کہنا ہے آپ نے؟ دیکھو بہن، تم میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہو، میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں، لیکن ہمارے یہاں ان باتوں کو مانا جاتا ہے، اس لیے اس لیے مجبور تم سے کہنے جا رہی ہوں، تم کل نکاح پر مت آنا۔ بیوہ کا نئی دلہن کے نکاح پر ہونا ہمارے یہاں بدشگونی مانی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں تو کئی لڑکیوں کے ساتھ ہو بھی چکا ہے، شادی کے چند ماہ بعد ہی وہ بھی بیوہ ہو گئی۔ آبدہ بیگم کی بات سن کر ماہرہ کا تو رنگ ہی اڑ گیا تھا، پہلے اپنے صدمے کو بھلا نہیں پائی تھی، اس بات پر یہ سن کر گھبرا سی گئی تھی، لیکن زنیرہ کو یہ بات بری سی لگی تھی۔ آنٹی کس دور میں رہتی ہیں آپ؟ آج کل کون ان باتوں کو مانتا ہے؟ نہ یہ باتیں قرآن سے ثابت ہیں، نہ حدیث سے، کس نے کہہ دیا آپ سے یہ سب؟ ارے ہمارے خاندان کی بزرگ خواتین کہتی ہیں، اور میں نے کہا تو ہے کہ ہم مانتے ہیں ایسی باتوں کو، اور بھائی میرا دل ڈرتا ہے۔ آبدہ بیگم کی باتیں ماہرہ بھی خوفزدہ ہوئی تھی، دل نہ بھی مانتا تب بھی جس بڑے صدمے سے گزر رہی تھی، سن کر ہی دل خوف سے لرز رہا تھا۔ اگر تم کل نکاح پر نہ آؤ تو میں احسان مند رہوں گی۔ آبدہ بیگم نے ہاتھ جوڑ کر منت کی تھی۔ نوفل بھائی کو پتہ بھی چل گیا تو اس بات کا تو وہ بھی نکاح پہ نہیں آئیں گے۔ بھائی تو پہلے ان کی حیات نہیں، ایک بھائی بھی ہیں، وہ بھی دیور کی شادی نہ دیکھیں۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ زنیرہ نے پورا کا پورا ناگواری کا اظہار کیا تھا۔ زنیرہ کی بات سن کر آبدہ بیگم نے ملتجئ نظروں سے منصیدہ کو دیکھا تھا۔ اللہ نہ کرے کہ نوفل کو کچھ ہو، آپ بے فکر ہیں، میں نہیں آؤں گی۔ بھابھی آپ بھی حد کرتی ہیں، آپ یہ سب فضول سی باتیں، ان کے خاندان کا یقین ان غلط باتوں پر پختہ ہے، تبھی ان کے ایسا ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو حرمیر در رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ اگر وہ میرے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے تو میرا معاملہ اس کے ساتھ ویسا ہی ہے، اور اگر وہ میرے بارے میں برا گمان رکھتا ہے تو معاملہ اس کے ساتھ ویسا ہی ہے۔ دیکھیے جی، اللہ اور رسول کی بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن دنیا داری بھی تو دیکھنی پڑتی ہے۔ میں تو چپ ہو جاؤں گی، لیکن وہ خواتین چپ نہیں ہوگی، پھر میرا دل اندر سے بڑا گھبرا رہا ہے۔ آفتاب بیگم کی بات پہ زنیرہ کچھ بولتی، ماہرہ نے اسے روک دیا۔ زنیرہ بات کو بڑھاؤ مت، ایک دن کی بات ہے، ان کے دل میں ایسا کوئی خلجان ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ زنیرہ کو چپ کروا کر وہ آفتاب بیگم سے مخاطب ہوئی، آپ بے فکر رہیے، میں نہیں آؤں گی، بڑی مہربانی جی آپ کی۔ آفتاب بیگم خوش ہو گئی تھی، خاندان کی چند ہی بڑی عورتوں کو بلایا گیا تھا اور ہارتے وقت کی فرض باتوں پر وہ عمل پیرا تھی۔ آبدہ بیگم سمیت ماہرہ اور زنیرہ وسیع کے ساتھ آئی تھی۔ زنیرہ تو گاڑی میں بیٹھے ہی شروع ہو گئی تھی، بھابھی کو دیکھ لیجیے گا نوفل بھائی کتنا غصہ کریں گے، ایسا کیا ہو گیا؟ وسیع نے برابر بیٹھی زنیرہ سے پوچھا تو اس نے آفتاب بیگم کی ساری بات اسے بتا دی۔ جاہل قوم ہے اور ہماری ہندوانہ رسموں کو اپنائے ہوئے ہیں، بھابھی آپ کو حامی نہیں بننی چاہیے تھی۔ وسیع کو بھی برا سا لگا تھا، وسیع میں کوئی رکاوٹ نہیں چاہتی اور کوئی ضرورت نہیں نوفل سے کچھ بھی کہنے کی، تم دونوں چپ رہو گے، وہ تو آج کل ویسے ہی الجھ پڑا ہے، اس لیے تم دونوں اسے مزید کچھ نہیں کہو گے۔ مگر بھابھی زنیرہ پلیز، میں کل عین وقت پر کوئی بھی بہانہ کر دوں گی، لیکن تم دونوں چپ رہو گے۔ ماہرہ مزید بات ہی ختم کر دی تھی، دونوں میاں بیوی خفی سے بیٹھے رہے۔ رمشا کو لگا تھا کہ نوفل غصے میں بھول گیا ہے، جب آپ ہی غلطی کا احساس ہوگا تو رمشا کو کی منت کرے گا، لیکن نہ وہ آیا نہ اس کے گھر سے کوئی آیا تھا۔ رمشا کی والدہ بھی یہی سمجھا کے بیٹی سے محبت کرتا ہے، جب ہڈے منانے آئے گا تو صاف الگ گھر کی ڈیمانڈ کر دے گی۔ نوفل کی شادی سے ایک دن پہلے رمشا سے ملنے آفس اس کی ایک کلیگ آئی تھی جو نوفل کو بھی جانتی تھی۔ رمشا نے نوکری چھوڑ دی تھی، شادی کے بعد نوکری کا ارادہ بھی نہیں تھا۔ اس لڑکی نے کچھ دیر میں ہی رمشا کی خیر خیریت پوچھی اور پرس میں سے ایک کارڈ نکال کر اسے دیا۔ یہ کیا ہے ثنا؟ نوفل کی شادی کا کارڈ ہے، کل شادی ہے اس کی، ہمیں تو اس نے منہ زبان ہی کہہ کر بلایا، کہہ رہا تھا کہ کارڈ نہیں چھپایا، بس ایک چھپوایا خاص تمہارے لیے، یہ لو۔ ثنا کی بات سن کر رمشا دنگ سی رہ گئی، یہ بھی کہتا ہے اس سے کہنا کلیگ ہونے کے ناطے میری شادی پر ضرور آئے۔ اچھا میں چلتی ہوں، گھر جا تیاری بھی تو کرنی ہے۔ وہ شاید رمشا کی حالت پر اعزاز اٹھانے آئی تھی، اس لیے اسے بت بنا دیکھ کر گئی تھی۔ رمشا کی خوش فہمی چھن سے ٹوٹی تھی، نوفل نے اس کی منت کیا مانی تھی، وہ اسی دن شادی کر رہا تھا، وہ بھی کسی اور لڑکی سے۔
शादी के लिए तैयार होकर सबसे पहले वो ज़रियाब की तस्वीर के सामने जा खड़ा हुआ था। ज़रियाब के वलीमे के दिन की तस्वीर थी। दोनों भाइयों के बीच में मायरा ज़रियाब के पहलू के साथ लगकर खड़ी थी। दोनों भाई मुस्कुरा रहे थे। तुम्हारी शादी तो मैं ऐसी धूमधाम से करूँगा, नौफिल के पूरा मोहल्ला कई सालों तक याद रखेगा। सबको बुलाऊँगा, ढोल, बैंड, बाजा ऐसा बजवाऊँगा कि सब लोग घरों से निकल कर देखेंगे ज़रियाब के भाई की बारात किस शान से जा रही है। कितनी उमंगें थी, कितने ख्वाब जो इस शख्स साथ मिट्टी के ढेर में दफन हो चुके थे। ना चाहिए हुए भी वो आंसू जब खो बैठा था। भाई देखो बन गया आपका नौफिल दूल्हा। हर फूल की किस्मत में कहाँ नाज़े अरसा है। कुछ फूल तो खिलते हैं बाज़ारों के लिए। ना दिल में कोई उमंग थी, ना ही इस तकरीब को लेकर कोई अछूते से जज्बों की बेताबियाँ। लगता था हमारे बंदे एक फ़र्ज़ निभाया जा रहा है ताकि लोगों की शक भरी नज़रों से मायरा को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। दोनों बच्चियाँ तैयार हो चुकी थी। ज़ुनैरा इन दोनों का ख़्याल रखना। मायरा ने बच्चियाँ ज़ुनैरा के हवाले की थी। वो मुँह बनाए खड़ी थी। नौफ़िल जब बस से बाहर आया तो मायरा इसी सफ़ेद लिबास में थी। भाभी आप भी अभी तक तैयार नहीं हुई? नौफ़िल मैं बस तैयार होने का ही सोची थी लेकिन मेरा सर बहुत चकरा रहा है। शायद नींद नहीं पूरी हुई है, सर में बहुत दर्द है। वो सर दबाते हुए बोली, तो पहले डॉक्टर के पास चलते हैं। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? नहीं बस काफ़ी दिन से शादी की तैयारियों की भाग-दौड़ कर रही थी, शायद थक गई हूँ। अगर मज़ीद साथ जाने से और थक गई तो शायद चकरा कर गिर जाऊँगी, मैं सो जाऊँगी तो ठीक हो जाऊँगी। मायरा ने बहाना बनाया था, यानी कि आप भी नहीं जाएँगी? साफ़ कहना भाभी आप जाना ही नहीं चाहती। मुझे तो भाई ने ही नहीं आपने भी लावारिस बना दिया है। वो पहले बामुश्किल ज़ब्त किए हुआ था। बेदिली से जबरन खुद को हर बात के लिए मनवा रहा था। दिल हर उमंग से खाली था। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं सच कह रही हूँ नौफ़िल, झूठ क्यों बोलूँगी तुमसे? अगर तुम्हें लगता है बहाने कर रही हूँ तो ठीक है चली जाती हूँ, अगर वहाँ जाते चलते गिर गई तो फिर मत शिकायत करना मुझसे। मायरा की बात सुनकर वो चुप-सा हो गया, चेहरे के दो रंगत को देखकर लग रहा था कि वाक़ई तबीयत ठीक नहीं है या नो कल की तरह वो भी किसी ज़ब्त से गुज़र रही हैं। आप आराम करें नौफ़िल ये कहकर जाने लगा। नौफ़िल 1 मिनट मायरा की पुकार पर रुक कर पलटा था, बहुत देर इसे देख रही थी, दरियाफ़ होता तो जाने कितनी बलाएँ लेता। प्यार से भाई के सदके उतारता। नौफिल के लिए तो इसकी ज़िंदगी का ख़ास दिन आज ही था। इसके पास वो खुद चलकर आई थी। पहली बार खुद को रोका नहीं था। नम आँखों से इसे देखने लगी। हाथ में पकड़े नोटों को इस पर वार करके एक मुलाज़िमा को दिए। खुदा तुम्हें हर बुरी नज़र नहुवत से बचाए और खुश रखे। प्यार से इसके गाल थपथपा कर कहा, अब जाऊँ ये कहकर खुद कमरे में चली गई। जानता हूँ आप झूठ बोल रही हैं, भाई के बगैर आप जा नहीं सकती मेरे साथ। दिल में ये आरज़ू लिए वो बाहर निकल गया। बारात क्या थी, चंद लोग थे, कुछ ऑफ़िस के कुलीग थे। बारात के इस्तकबाल के लिए भी अबीर अपनी छोटी बहन भाइयों के साथ फूलों की प्लेटें पकड़े बेदिली से खड़ी थी। बहन के लिए दिल उदास था। इसे बचाने के चक्कर में अपनी से दुगनी उम्र से शादी कर रही थी। गाड़ी का हॉर्न सुनकर आँखों की नमी को पोंछा था, लेकिन जब दूल्हे को अंदर दाखिल होता देखा तो हैरान परेशान सी रह गई थी। फूल अबीरा के हाथ में ही रह गए थे। वसी और अपने चंद कुलीग के साथ नौफिल अंदर दाखिल हुआ था। अकमल सार और चंद इन की उम्र के लोग थे जो नौफिल के गले मिल रहे थे। अबीरा इस खूबसूरत नौजवान को देख रही थी, उसका नसीब होते होते रह गया था। जल्दी से अफीरा के कमरे में गए। वो दुल्हन बनी अकेली बैठी थी। अबीरा इसके पास आकर हवास पख्ती से बोली, अपिया वो नौजवान सा है, बूढ़ा तो नहीं है? अबीरा की नाफहमी को देखकर अफीरा खिलखिला कर हंसी थी। अबीरा से ताज्जुब से देखने लगी। अफीरा ने बामुश्किल अपनी हंसी रोकी, फिर गला खंगाल कर भी बोली, हाँ मुझे मालूम है बड़ा हैंडसम है मेरा होने वाला शौहर, जियान से भी ज़्यादा और अमीर भी बहुत है, जियान से ज़्यादा। इस दिन देखा था मैंने इसे ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए, समझ लो अबीरा इसी वक्त दिल आ गया था मेरा इस पर। फिर जिस चीज़ पर अफीरा का दिल आ जाए मुमकिन नहीं कि वो किसी और की हो जाए। अबीरा जिससे इसे देख रही थी वे यकीनी से इसकी बात सुन रही थी। ये वाकई इसकी सगी बहन थी। अपिया बामुश्किल अबीरा बहते आंसू से ये बोल पाई थी, अब रोना धोना बंद करो अपना, वो कौन सी तुम्हारी मोहब्बत है, एक रिश्ता ही आया था और रिश्तों का क्या और आ जाएंगे तुम्हारे। कर लेना शादी किसी परचून वाले से। ऐसा मुतबराना अंदाज था कि अबीरा दंग थी। अफीरा का हद भरा लहजा जिसे वो दुनिया को मुसख करने का हुनर जानती थी। वो लड़का वाक़ई अबीरा की मोहब्बत नहीं था, लेकिन इसका नसीब ज़रूर बन सकता था जिसे बहन की बेहिसी और अयारी ने अपना नसीब बना लिया था। दरवाजे के अंदर सबसे पहले आफ़ताब बेगम आई, फिर अकमल साहब। आइए आइए कारी साहब। चंद बुज़ुर्ग ख़वातीन भी कारी साहब के पीछे अंदर आ गईं।
نکاح شروع ہوا، ایجاب قبول بھی ہو گیا۔ ابیرہ بس ایک ٹکے اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی جو اس وقت قسمت کی دھنی تھی۔ اپنی بے وقوفی اور کم عقلی پر ابیرہ کو رونا آیا تھا۔ افیرہ کی چالاک اور تیز طرح مزاج اس سے مخفی تو نہ تھا، پھر جو لڑکی اپنے لیے کم حیثیت والے رشتے قبول نہیں کرتی تھی کسی عمر رسیدہ شخص کے لیے کیسے مان سکتی تھی؟ ماں باپ کی عزت کا پاس پہلے کون سا رکھتی آ رہی تھی جو اب خیال آ گیا تھا؟ جان کے ساتھ پچھلے 5 سالوں سے ڈیٹ پر آ جا رہی تھی، کب پرواہ تھی کہ اگر کسی نے دیکھ لے تو باپ کی عزت کا کیا ہوگا؟ ابیرہ کو بہن کی سمجھ بھی آئی تھی تو کس مقام پر، جب ابیرہ کے ہاتھ سے اس کی خوش نصیبی ریت کی طرح سے ہاتھ سے پھسل چکی تھی۔ وہ چپ چاپ کمرے سے نکل گئی، صحن میں رکھی کرسیوں کے سب سے پیچھے جا کر بیٹھ گئی۔ نکاح ہوا، کھانا لگا، ابیرہ وہاں سے اٹھی تک نہیں۔ رخصتی سے پہلے چھوٹی بہن اسے ڈھونڈتی ہوئی آئی تھی۔ آپ ہی چلو نا، افی آپ ہی رخصت ہونے لگی ہے، اماں کہہ رہی دودھ پلائی کی رسم کر لو۔ ابیرہ نے آنسو صاف کیے، تم کر لو چھوٹی، مجھے نہیں کرنی رسم۔ ارے چلو نا آپ ہی، ایسے مزہ تھوڑی آئے گا۔ چھوٹی بہن اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر اسے اندر ڈرائنگ روم میں لے گئی۔ افیرہ شرمائی شرمائی نوفل کے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی، البتہ نوفل بیزار سا بیٹھا بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ وسیم سے کہو جو رسمیں کرنی جلدی کر لیں، بھابھی اکیلی ہیں گھر میں، رات کے 11 بج رہے ہیں۔ نوفل سنجیدہ سے بیٹھا ہوا تھا، ایک دفعہ بھی برابر بیٹھی اپنی دلہن کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ منزہ اب بھی چاچا کی گود میں بیٹھی جھانک جھانک کر دلہن دیکھ رہی تھی اور عائزہ وسیع کی گود میں تھی۔ ابیرہ خاموشی سے سامنے کھڑی ہو گئی، کچھ نہیں بولی۔ وابدہ بیگم کو ہی کہنا پڑا، آپ ہی سلام کرو بھائی کو۔ آبدہ بیگم کی گھوری پر ابیرہ نے گلے میں پھنسا آنسو کا گولا اندر کو نگلا تھا۔ السلام علیکم۔ ابیرہ کی آواز سے بس ایک نظر ہی نوفل نے اسے دیکھا تھا، سلام کا جواب دیا۔ چھوٹی بہن نے ہی ماں کے اشارے پر ماں کے طوطے کی طرح رٹوائی ہوئی بات کو دہرایا اور دودھ کا گلاس پکڑاتے ہوئے نوفل سے کہا، نوفل بھائی ہمیں دودھ پلائی میں 20,000 چاہیے۔ نوفل نے گلاس کو ہاتھ نہیں لگاتا، البتہ جیب سے پیسے نکال کر وسیع کو پکڑا دیے۔ وسیع نے پیسے گن کر 20,000 پکڑا دیے، بنا کسی بحث اور مذاق کے جملے بازی کے بغیر یہ رسم ادا ہوئی تھی۔ آبدہ بیگم تو حیران رہ گئی تھی، انہیں تو لگا تھا کہ 20 مانگیں گے تو بات جا کر 10 تک پہنچے گی، کیا خبر تھی کہ 20 مانگنے پر 20 ہی مل جائیں گے، ورنہ 20 کے بجائے 50 ہی کہہ دیتی۔ لالچ انسان کو اندر سے کبھی مطمئن نہیں رہنے دیتی، بے چین کیے رکھتی ہے۔ وہ انسان ہر وقت اسی افسوس میں رہتا ہے کہ کاش یہ بھی مل جائے، وہ بھی آ جائے۔ یہی مزاج افیرہ کا بھی تھا۔ رخصت ہوتے ہوئے ماں کے گلے لگ کر رونے دھونے کی بجائے یہ کہہ رہی تھی، ان پیسوں میں سے 10 میرے لیے سائڈ پہ رکھ دینا، اماں خبردار جو خرچ کیے تو۔ افیرہ بھی آبدہ بیگم کی پرچھائی تھی، کوئی ملال نہیں تھا کہ زیان کے ساتھ کیا کر کے جا رہی ہے۔ جب اسے خبر ہوئی تو کیا کرے گا، بس دودھ پلائی کے پیسوں کی فکر تھی۔ ابیرہ منظر سے ہی غائب تھی، اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ پھر گاڑی میں پیچھے زنیرہ کے ساتھ بیٹھی تھی، ڈرائیو وسیع کر رہا تھا، نوفل خاموشی میں ہی بیٹھا ہوا تھا، دونوں بچیاں چچا کی گود میں بیٹھی تھی۔ چاچو یہ پیچھے دلہن ہے۔ منزہ نے پہلی بار دلہن کا نام سنا تھا، دلہن کو دیکھا تھا۔ نوفل نے مختصر جواب دیا، چاچو یہ ہمارے ساتھ کیوں جا رہی ہیں؟ منزہ کے چھوٹے سے ذہن میں بے شمار سوال تھے۔ اس لیے کہ یہ چاچو کی دلہن ہے، ہمارے ساتھ ہی جائیں گی ہمارے گھر، تم بھی منی اسٹوپٹ ہو اب پوری۔ عائزہ نے بڑی اور سمجھدار بہن ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ عائزہ بری بات، نوفل میں گود میں بیٹھی عائزہ کو نپٹا۔ منزہ اب نوفل کی گود میں کھڑی ہو کر پیچھے ہو کر دلہن دیکھنے لگی، سرخ رنگ کی فینسی میکسی میں تیار شیار دلہن اسے بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ پھر نوفل کے کان میں پوچھنے لگی، چاچو یہ آپ کی دلہن ہے؟ اپنی طرف سے منزہ نے بڑی رازداری سے پوچھا تھا، لیکن آواز سب نے سنی تھی۔ وسیم مسکرانے لگا، نوفل جواب دو بچی کو، کب سے پوچھ رہی ہے تم سے؟ خاموش بیٹھے نوفل کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے وسیع نے ماحول کو بدلنا چاہا، منی آپ کو دلہن پسند ہے تو آپ لے لو۔ نوفل نے منزہ سے کہا اور پھر اسے پھر سے گود میں بٹھا لیا، جو اس کی گود میں کھڑی ہو کر پیچھے افیرہ کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں منی یہ تم رکھ لو، چاچو دوسری لے کر آئیں گے، وسیع نے مذاق کہا تھا۔ زنیرہ اور وسیع ہنسنے لگے، نوفل بھی مسکرانے پہ مجبور ہوا تھا، لیکن افیرہ نے اس مذاق کو مذاق نہیں لیا تھا۔ دلہن بنی نہ بیٹھی ہوتی تو تڑق کر جواب دیتی، لیکن اس نے بڑی مشکل سے زبان کو روکا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی مظہر نے غصے سے آفرین کو دیکھا تھا، میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے تمہاری نظر میں، آپ کی بات سر آنکھوں پر ہے مظہر، لیکن میری ان باتوں پر یقین نہیں ہے۔ مجھے حیرت ہے آپ پر کہ آپ کیسے ان لوگوں کی جھوٹی کہانیوں پہ یقین کر سکتے ہیں۔ ایک ویل ایجوکیٹڈ ہو کر آفرین نے دل میں چھپے خدشے کا اظہار کیا تھا، کیوں تمہارا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ وہ عورت دیندار ہے، مفت میں لوگوں کو بھلا کر رہی ہے، اللہ پاک کا کلام بھی پڑھتی ہے، ساری عمر شادی کے بغیر اس نے گزار دی، ہر وقت بس وضو میں رہتی ہے، اس کی دعائیں قبولیت کا
درجہ رکھتی ہیں۔ یہ جو ماریہ کا حال ہو اسی کی بددعا کا نتیجہ ہے۔ احمق لڑکی، سمجھتی کیوں نہیں ہو تم؟ افسوس ہے مجھے آپ کی دقیانوسی سوچ پر۔ میں تو اب تک یہ سمجھتی رہی کہ میرے شوہر کی سوچ بہت اعلیٰ اور ایک سطحی سوچ کا مالک نہیں ہے، لیکن آج یہ سب دیکھ کر میں صرف افسوس کر سکتی ہوں۔ اگر اتنی ہی والی ہے تو پاک بی بی ہے تو بالوں کو کھلا کیوں چھوڑ رکھا ہے؟ نہ سر پورا ڈھانپا ہے، نہ ہی اپنی زینت پر پورا پردہ ہے، نہ مردوں سے کوئی پردہ ہے۔ زبان پر لگام دو اپنی، جو کچھ تم کہہ رہی ہو وہ سب ان کے علم میں ہے، مگر وہ خدا نہیں۔ ہاں ہو سکتا اپنے چند جنات کے ذریعے چند باتوں کو جان بھی جاتی ہوں گی، لیکن اللہ کے متقابل اسے کھڑا مت کریں، یہ شرک ہے۔ آفرین کی بات پر وہ ہتے سے اکھڑا تھا۔ جو منہ آتا ہے بس پکے چلی جا رہی ہو، نہ میں نے اسے خدا کہا ہے، نہ خدا کے مقابل کھڑا کیا ہے۔ وہ بھی اللہ کی بندی ہے، اللہ کی عنایات ہوتی ہیں ان پر، میں کوئی بحث نہیں سننا چاہتا۔ اب تک میں تمہارا علاج چھپکا کر رہا تھا، لیکن اب تم پابندی سے تعویذ کا پانی پیو گی۔ مجھے میرا بچہ بالکل صحت مند اور تندرست چاہیے۔ مطلب اتنا پریشان تھا جیسے اس عورت کے کہنے کے مطابق اپنے بچے کو کھو بیٹھے گا۔ میں یہ ہرگز نہیں پیوں گی۔ آفرین کے انکار سے چلتی گاڑی کو بریک لگی تھی۔ مظہر کے ماتھے پہ پڑی سلوٹوں میں اضافہ ہوا تھا۔ آفرین نے مجھے انکار نہیں سنا۔ آفرین اس کے غصے کو دیکھ کر وقتی طور پر چپ سی ہو گئی۔ کچھ نہیں کہا، لیکن یہ سوچ چکی تھی کہ اس کی اس سوچ کی تائید کبھی نہیں کرے گی۔ ماہرہ کے ساتھ ایک ملازمہ گھر پر رکی تھی۔ سب کے جاتے اس نے پورا گھر صاف کروایا تھا، پھر اسے کھانا دے کر خود اب کمرے میں آ گئی۔ پنکھا چلایا۔ گرمی میں جب تک وہ اپنے کمرے سے باہر ہوتی تھی سفید چادر ہی لپٹی رہتی تھی۔ سفید چادر اتار کر ایک طرف رکھی ذریعہ کی تصویر کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ سب تصاویر میں اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، کہیں وہ ماہرہ کو دیکھ کر مسکراتا ہے، کہیں اسے ساتھ لگائے ہوئے کان میں کوئی سرگوشی کر رہا تھا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ ماضی کی حسین یادیں تھیں اس کے پاس جو وقتاً وقت اسے یاد آنے لگتی تھیں۔ ذرا اب یہ دیکھیں، آج میں آپ کے سارے پیسے شاپنگ میں اڑا کر آئی ہوں۔ ماہرہ نے شاپنگ بیگ کا بیڈ پہ ڈھیر لگا دیا تھا۔ وہ دکان سے لوٹا تھا تو گھر پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ دونوں دیور بھابھی شاپنگ پر گئے تھے۔ زیراب نے نوفل کو کال کی۔ کہاں ہو تم دونوں؟ پیچھے سے ماہرہ کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ دکانداروں سے وہ کپڑے نکالنے میں مصروف تھی۔ آپ کی جیب کو آنکھ لگانے کا پروگرام آپ کی زوجہ نے بنایا ہے، بندہ تو تابعداری نبھا رہا ہے۔ نوفل کی بات پر وہ ہنسنے لگا۔ ہاں، اس تابعداری کے بدلے برانڈ کی شرٹیں جو ملنے والی ہیں تمہیں، تم اور تمہاری تابعداری خوب جانتا ہوں میں۔ ذریعہ آپ کی اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ نوفل بازار جائے اور اپنی شاپنگ نہ کرے، ممکن ہی نہیں تھا۔ اس بات پر ہنسنے کی باری نوفل کی تھی۔ یار بھائی، اب مجھ غریب کا اتنا تو حق بنتا نا، 3 گھنٹے سے ڈیوٹی دے رہا ہوں۔ اچھا سنو، سارے پیسے اڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذریعہ آپ نے فون بند کرنے سے پہلے تاکید کی تھی۔ اوکے، 100 200 ضرور بچا کر لاؤں گا۔ نوفل یہ کہہ کر فون بند کیا تھا۔ ذریعہ فون بند کیا۔ ماہرہ کھانا تیار کر کے گئی تھی، اس لیے اس نے کھانا کھانے کے بعد اپنے لیے چائے بنائی اور کمرے میں بیٹھ گیا۔ باہر مین گیٹ پر چابی نوفل کے پاس بھی تھی، اس لیے ماہرہ نے آتے ہی کمرے کا رخ کیا تھا۔ شاپنگ بیگ بیڈ پر رکھ کر کہا۔ نوفل بھی دونوں بچوں کو گود میں اٹھائے ادھر پہنچا تھا، دونوں کو بیڈ پر بٹھایا۔ اوہ بھائی، کیا چیز ہے یہ؟ پھولے سانس کے ساتھ ماہرہ کی طرف اشارہ کیا۔ اتنی شاپنگ؟ میری توبہ، آپ کے پیسے جو گئے وہ گئے، میرے کریڈٹ کارڈ کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے۔ دریافت نے بس ایک ہی گھٹ میں چائے کا پیا تھا، کپ ماہرہ نے اس سے پکڑ لیا۔ نوفل کی بات سن کر ماہرہ چائے کا گرم گھٹ جلدی سے اندر اتارا اور دریافت سے کہنے لگی، کتنا جھوٹا یہ دریافت، 6 شرٹیں تو اپنی خرید کے لایا، وہ پرفیوم الگ سے۔ ماہرہ اور نوفل کی نہ ختم ہونے والی بحث چھڑ چکی تھی۔ ساتھ ساتھ وہ چائے بھی پی رہی تھی، ساتھ ساتھ نوفل کی شکایتیں لگا رہی تھی۔ نوفل جوتوں سمیت بیڈ پہ بیٹھا ہوا تھا، پھر ماہرہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھینا تھا۔ بہت پی لی چائے اپنی، اب چھٹی کریں؟ یہ نہیں ہوا کہ پوچھ لوں نوفل پیو گے کہ نہیں؟ سارے بازار میں بھتیجیوں سمیت شاپنگ بیگ بھی میں نے پکڑ کر ڈیوٹی دی ہے۔ باقی کی چائے اب وہ پی رہا تھا۔ مطلب میں سمجھوں کہ میرے پیسے کو خوب اجاڑ کر تم لوگ واپس آئے ہو۔ ذرا اب شاپنگ بیگ سے کپڑے نکال کر دیکھ رہا تھا۔ ماہرہ کے سارے ڈریسز اسے پسند آئے تھے، سوائے ایک سفید رنگ کے جوڑے کے۔ ماہرہ، یہ رنگ کیوں اٹھا لائی ہو؟ تم پر بالکل سوٹ نہیں کرتا، تم بس رنگوں میں اچھی لگتی ہو، یہ واپس کروا دینا۔ ذریعہ آپ کے سامنے نہیں پہنوں گی، لیکن محلے میں آئے دن قرآن خوانی پر کوئی نہ کوئی بلا لیتا ہے، اس لیے لائی تھی۔ اپنا ہی عکس وہ ذریعہ کی فریم میں بڑی سی لگی تصویر میں دیکھ رہی تھی، جہاں اسے اپنا سفید لباس میں لپٹا وجود نظر آ رہا تھا۔
ज़रिए आप मुझे रंगों की इतनी चाह कभी नहीं थी जितनी आपकी ज़िंदगी में शामिल होकर हो गई थी। आपने मुझे इतने रंगों से मुतारिफ़ करवाया कि बस एक सफ़ेद रंग को भूल बैठी थी। मुझे याद ही नहीं मैंने आपकी संगत में रहते हुए कभी सफ़ेद रंग भी पहना हो। क्यों चले गए आप? सिसकियों से वो रोने लगी थी। इसके बिल्कुल तस्वीर के पास खड़ी हो गई। एक सफ़ेद कफ़न अपने साथ मुझे भी पहनाकर खुद तो ओझल हो गए सबकी नज़रों से और मैं इसे पहनकर अपनी कब्र ढूँढती फिरती हूँ। बेविकी की चादर बड़ी ग़ारदार होती है। ज़रा आप देखो ना मेरी रूह तक ज़ख्मी कर चुकी है। आपको पता है आप मुझे नायाब कहते थे और लोग लोग मुझे मनहूस समझने लगे हैं। मेरा किसी सुहागन के पास जाना बदशगुन है। तेज़ी से बहते आँसू सामने लगी ज़रिया की तस्वीर में अपने आँसू देख रही थी। एक पल को शोभा हो के आँसू दरियाब के मुस्कुराते चेहरे से बह रहे हैं, हिचकियों से रो रही थी। ये मत समझना कि मैंने अपने फ़र्ज़ निभाने में कोताही की है। मैं जाना चाहती थी शादी पर ज़रिया, लेकिन देखो ना लोगों ने आपकी मायरा को मनहूस समझ लिया है। मेरा शुमार बदबख्तों में हो चुका है। मैं मायरा ज़रियाब जो खुद को खुशनसीब समझती थी, मेरी सारी खुशनसीबी तो शायद आपके साथ मानो मिट्टी के नीचे जाकर दब गई है। अब मैं सिर्फ़ बेचारी मजबूर और लाचार सी मायरा हूँ। कुछ पल के लिए वो अकेली नहीं रो रही थी, ज़रियाब भी इसके साथ आँसू बहा रहा है। फिर लगा जैसे कमरे का दरवाज़ा खुला है, सामने ज़रियाब खड़ा है सफ़ेद लिबास में, उदास सा, रंजीदा सा। वो भागकर इसके साथ लग के रोने लगी। वो इसे अपने हिसार में लिए हुए थे। एक मखसूस सी महक थी जो मायरा को इससे महसूस हो रही थी। कोई लफ्ज़ नहीं था मायरा के पास, वो इसके साथ लगी रो रही थी। वो भी खामोश था, सब इसे अपने अंदर समेटे हुए था। जब बाहर की डोरबेल पर वो चौंकी थी और अब भी तस्वीर के सामने खड़ी थी, कोई और वहाँ नहीं था। मायरा की नज़र दरवाजे पे बरजस्ता उठी थी। दरवाज़ा अब भी बंद था, शायद किसी ख़्याल के ज़ेर असर थी। दरियाब सब सिर्फ़ एक हसीन तसव्वुर था। दूसरी डोरबेल पर खामोश में आई थी। याद आया कि नौफ़िल आ गया होगा। जल्दी से कमरा लाइट ऑफ़ की और बेड पर लेटकर लिहाफ़ मुँह तक ओढ़ लिया। नौबाता दुल्हन का सामना करना नहीं चाहती थी, अपने साये से इसे दूर रखना चाहती थी। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल लाइम थी, जानती थी ये बातें यकीनी है, लेकिन लोगों के रवैये अच्छे बच्चों की अकल को मात देते हैं। बहुत कुछ ऐसा सोचने में मजबूर कर देते हैं कि जैसे इस पर हुए वाली आज़माइश में भी इसी का कसूर हो। वो वाक़ई बुरी हो, बदकिस्मत को हो, मनहूस हो। कमरे का दरवाज़े पे दस्तक हुई थी। नौफ़िल ने इसे बाहर से पुकारा था, भाभी, लेकिन मायरा ने कोई जवाब नहीं दिया। सुनैरा भाभी अंदर जाके देखे भाभी की तबीयत तो ठीक है, वरना मैं डॉक्टर के पास ले जाऊँ इन्हें। नौफ़िल की आवाज़ में फ़िक्रमंदी थी। दरवाज़ा खुला था। इसने आंखों पर बाजू रख लिया था तो रोकर अपनी आंखें सुजा बैठी थी। किसी को देखना नहीं चाहती थी। जुनैना ने सिर्फ मुंह तक चादर ताने देखा तो अंदर नहीं आई। नौफिल भाई भाभी सो रही हैं। ओह अच्छा ठीक है, आप अफीरा को कमरे में ले जाएं। आयज़ा और मुनज़्ज़ा सो चुकी हैं, मैं इन्हें बेड पर लेटा देता हूँ। नौफिल ने बारी बारी दोनों को मायरा के बेड पर लेटाया था, फिर कमरे का दरवाज़ा बंद करके चला गया। 2 दिन से शीज़ा की उल्टियाँ नहीं रुक रही थी। इरफ़ान को पहली बार बीवी का ख़्याल आया था। शीज़ा की पीली ज़र्द रंगत देखकर पहली बार दिल को बुरा-सा लगा था। वो वॉशरूम से हाँफते हुए बाहर निकली थी। कुछ देर अपना पूरा हुआ साँस बहाल करती रही, फिर दुपट्टा उड़कर कमरे से बाहर जाने लगी। "कहाँ जा रही हो तुम?" इरफ़ान इसी को देख रहा था। बहुत कमज़ोर हो गई थी। इसकी मुसलसल चुप ने जैसे इरफ़ान के अंदर हलचल मचानी शुरू की थी। "सबके लिए नाश्ता बनाना है, रहने दो तुम नाश्ता, हालत देखो अपनी, चादर ओढ़ो अपनी, तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊँ।" शुजा को अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा था। कुछ पल तो बड़ी हैरत से इरफ़ान को देखा था। "कुछ कह रहा हूँ तुमसे।" इरफ़ान ने दोबारा कहा तो शिज़ा ने अलमारी से चादर ली और खुद ऊपर ओढ़ ली। अब जब दोनों अम्मा जी से इजाज़त लेने आए तो वो दोनों को एक साथ देखकर मुत्तिर हुई थीं। "अम्मा मैं शिज़ा को डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ, तबीयत ठीक नहीं है इसकी।" इरफ़ान ने इजाज़त नहीं माँगी थी, बताया था। "लो ऐसा कौन-सा मर्ज़ लाहिक हो गया इसे? सब नाश्ते के लिए भूखे बैठे हैं और तुम इसे ले जा रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं है, सब ड्रामेबाज़ियाँ हैं।" अम्मा ने साफ़ इनकार किया था। "अम्मा आपको इसकी हालत नज़र नहीं आती है, कल से बीमार है कि वो मैं कहीं अय्याशी करवाने नहीं ले जा रहा, इसे बस डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। कुछ देर में दवा लेकर वापस छोड़ दूँगा। इसे ज़रनिश और बिनिश से कह के नाश्ता वो बना दें।" इरफ़ान की बात सुनकर अम्मा जी की आँखें फैली थी। इरफ़ान के फेवर देखकर होश ही तो उड़ गए थे। डॉक्टर ने चेकअप के बाद जो खुशखबरी सुनाई थी, एक पल तो इरफ़ान बहुत खुश हुआ था, लेकिन अम्मा की बात आते ही पल में उदास सा हो गया था। शीज़ा अलबत्ता बहुत खुश थी। इस वक़्त तो डॉक्टर के दिए गए डिस्क्रिप्शन पेपर के मुताबिक सारी मेडिसिन इरफ़ान ने ले दी थी। बाइक घर के बाहर खड़ी करके शीज़ा से कहने लगा, "सुनो अम्मा जी को कुछ मत बताना, कह देना कि दवा दिए ठीक हो जाओगी तुम, इनसे मैं खुद बात कर लूँगा।" इरफ़ान ने पहला स्टेप बीवी के लिए उठाया था। "जी" ये कहकर शीज़ा दरवाज़ा खटखटाने लगी। शीज़ा बाइक को दोबारा स्टार्ट करते हुए बोला। इरफ़ान ने इसे फिर से पुकारा। शीज़ा ने पलटकर इसे देखा। "अपना ख़्याल रखना" ये कहकर वो चला गया। शीज़ा के लिए तो इसकी एक
مہربان نظر ہی دل کو خوش کرنے کے لیے کافی تھی۔ مسکراہٹ خود پہ خود چہرے پہ پھیل گئی تھی۔ شاید اولاد میں کشش اتنی ہوتی ہے کہ مرد بیوی کا احساس کرنے لگتا ہے، دل میں نرم گوشہ پیدا ہونے لگتا ہے، جو عرفان کے لہجے سے لگ رہا تھا۔ گھر آتے ہی نوفل افیرہ کو مائرہ ملوانا چاہتا تھا، لیکن وہ سو چکی تھی۔ دونوں بچیاں بھی سو گئی تھیں۔ وسیم نے عائدہ کو صوفے پہ لٹا دیا تھا۔ نوفل نے زنیرہ سے کہا کہ افیرہ کو کمرے کے لے جائے اور خود باری باری دونوں بچیوں کو بیڈ پہ لٹا کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد وسیم کے ساتھ باہر لانچ میں بیٹھا رہا، ملازمہ سے چائے بنوا کر بھی وسیم کے ساتھ پی تھی۔ زنیرہ نے افیرہ کو کمرے میں بٹھاتے ہی اے سی آن کر دیا تھا۔ گرمیوں کا موسم تھا، پھر دلہن کے پہناوے میں تو گرمی برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ افیرہ بڑے بے تکلف انداز سے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اف بہت گرمی ہے بھائی۔ افیرہ ہاتھ سے خود کو ہوا دینے لگی۔ زنیرہ نے پنکھا بھی چلا دیا۔ پلیز ذرا میرے جوتے تو اتار دو، افیرہ نے زنیرہ سے کہہ کے سامنے اپنے پاؤں بڑھا کر کہا۔ زنیرہ کچھ پل تو اسے دیکھتی رہ گئی۔ آئی کہاں سے تھی اور ایک چھوٹے سے محلے کے چھوٹے سے گھر سے، اور نخرے یوں دکھا رہی جیسے کوئی لینڈ لاٹ ہو۔ آئی ایم سوری افیرہ، جوتے میں اپنے میاں کے علاوہ کسی کے نہیں اتارتی۔ زنیرہ کون سی کم تھی، دو بدو جواب دینا جانتی تھی۔ افیرہ ابرو اٹھا کر دیکھنے لگی جیسے وہ خود کو بہت اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہو اور سامنے والا کم حیثیت کا ہو۔ پھر خود ہی اپنے پاؤں سے ہیل والے سینڈل اتارنے لگی۔ آپ کو کچھ چاہیے تو بتا دیں۔ زنیرہ کو افیرہ کا رویہ اچھا نہیں لگا تھا، لیکن پھر بھی رسم پوچھ لیا تھا۔ بس تنہائی چاہیے، اگر مل جائے تو، افیرہ نے تڑق کر جواب دیا تھا اور خود تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ زنیرہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ پہلی نظر میں اسے افیرہ بد دماغ سی لگی تھی۔ باہر آئے تو وسیم مزے سے چائے پی رہا تھا، وہ بھی جا کر اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ تم آ بھی گئی اتنی جلدی، مجھے تو لگا تھا خواتین کی باتیں کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، لیکن تمہاری محفل تو بڑی جلدی برخاست ہو گئی۔ زنیرہ کو دیکھ کر وسیم نے چھیڑا تھا، بس نیند آ رہی ہے، کافی تھک گئی ہوں۔ اچھا چائے ختم کر لو پھر چلتے ہیں۔ وسیم بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم لوگ صبح آ جاؤ تو، محفل نے ملتجی لہجے میں درخواست کی تھی۔ کافی دن سے زنیرہ مائرہ کے ساتھ ساتھ ہی تھی، ظاہر ہے کب تک اپنا گھر چھوڑ سکتی تھی، تم نہ بھی کہتے تب بھی آ جاتا۔ خالی کپ ٹیبل پر رکھ کر وسیم کھڑا ہو گیا، نوفل سے گلے ملا اور اجازت لے کر چلا گیا۔ ملازمہ بھی لانچ کے کونے پہ بستر بچھانے لگی۔ نوفل اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرہ سجایا نہیں گیا تھا، سادہ سا کمرہ، سادہ فرنیچر دیکھا پھر اب غص سی گئی تھی۔ گھر بھی بہت بڑا نہیں تھا، باہر چھوٹا سا صحن تھا، اندر ایک لانچ اور بس دو کمرے۔ وہ تو کسی مہر کا تصور باندھے ہوئی تھی۔ پرانا سا فرنیچر دیکھ کر وہ تو پل اپنے جذباتی فیصلے پر افسوس ہوا تھا۔ کمرہ بہت شادہ نہیں تھا، بس مناسب سا تھا، پھر ایک گلاب کا پھول تک نہیں سجایا گیا تھا۔ نوفل کے اندر داخل ہوئے پر وہ سیدھی ہو کر بیٹھی تھی، بس ایک دولہا مطلب کا مل گیا تھا، زیان سے کئی گنا زیادہ ہینڈسم۔ پہلی رات کی دلہن کی طرح شرمانا نظریں چرانا افیرہ کے بس کی بات نہیں تھی، اس لیے بڑے مطمئن انداز سے بیٹھی تھی۔ نوفل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اگر حالات ایسے نہ ہوتے تو شاید اس رات کے خواب اس کی آنکھوں میں بہت سے سجے ہوتے، لیکن اس وقت آنکھیں اور دل خالی مکان تھا۔ نوفل نے ایک نظر اس پر ڈالی، وہ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ نوفل سے نظروں کی تصادم پر شرم سے نظریں نہیں چرائی تھی، بس مسکرانے لگی تھی۔ افیرہ، میں بیوی کے ساتھ آپ جناب کا قائل نہیں ہوں، نہ ہی منافقت پر یقین رکھتا ہوں، نہ رشتے کی شروعات جھوٹ کی بنیادوں کا رکھنا پسند کرتا ہوں۔ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی نہیں ہو، میری پہلی بھی منگنی ہو چکی تھی اور یہ بات تمہارے والد کے علم میں لا چکا تھا۔ ان سے کچھ نہیں چھپایا، وہ لڑکی میری پسند تھی، لیکن اس سے زیادہ مجھے اپنی فیملی بہت پسند ہے۔ میری بھائی میں میری جان بستی تھی اور ان کے بعد ان کی بیٹیوں پر میں جان نچھاور کرتا ہوں۔ وہ بلا جھجک اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اسے بتا رہا تھا، بلکہ اچھی طرح ہی سمجھا رہا تھا کہ اس کی فیملی اس کے لیے کتنی اہم ہے۔ پہلی بار افیرہ نے نظریں بدلی تھی۔ رمشا میری سابقہ منگیتر کا نام ہے، کوئی برائی نہیں تھی اس میں، تم سے زیادہ خوبصورت تھی، دولت مند، تعلیم یافتہ، وہ ہر خوبی جو مجھ جیسا لڑکا اپنی لائف پارٹنر میں چاہتا ہے، بس اسے میری فیملی سے پرابلم تھا، وہ بھابھی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی، اکیلے رہنے کی ممتنی تھی۔ میں نے ایک منٹ نہیں لگایا، اسے اپنے رشتے سے آزاد کرا دیا اور تمہیں دیکھے بنا جانے بنا تم سے اس لیے شادی کری کیونکہ تمہارے والد نے وعدہ کیا کہ ان کی بیٹی ہمیشہ گھر جوڑ کر رکھے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس گھر کو اور یہاں کے مکینوں کو اپنی محبت سے جوڑ لو، میری محبت اور چاہت کی حقدار تم خود بخود ہو جاؤ گی۔ سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ساری باتیں افیرہ کی توقع کے برخلاف تھی۔ وہ تو سمجھتی تھی دلہا میاں اس کے حسن کے قصیدے پڑھ کر سنائے گا اور وہ اس بات پر اترائے گی۔ پہلی نظر ڈالتے ہی شاید اس کی بھابھی افیرہ کو دیکھا جیسے اس پر فریضہ ہوئی تھی، دیور بھی جان نچھاور کر دے گا، لیکن یہاں تو قصہ ہی اور تھا۔ وہ بڑے مزاج سے بیٹھی رہی، جواب نہیں دیا۔
ज़ियान होता तो शायद मेरी मोहब्बत में दीवान ही पड़ देता, और ये इसे अपनी साहबका मंगेतर और अपनी फैमिली याद आ रही है। जैसे बड़ा कोई शहज़ादा गुलफ़ाम है। इसकी ज़िंदगी अगर पहले से कोई लड़की थी तो ये कौन-सा मेरी ज़िंदगी में आने वाला पहला मर्द है। मुझे चाहने वाले बहुत थे। कोई खुद पसंदाना सोच थी, अफ़ीरा की नौफ़िल की चुटकी पर वो चौंकी थी। इसकी तरफ बरजस्ता देखने लगी। कहाँ गुम हो? जी आ गई समझ, वो ख़फ़ी से बोली। ऐसी समझदारी दिखाओगी तो बहुत निभेगी हमारी। साइड टेबल के ऊपर रखी मखमली डिब्बियाँ पकड़कर इसमें से सोने के 2 कंगन निकाले, अफ़ीरा का हाथ थाम कर इसे पहना दिए। ज़ियान सुनाए, मिस सफ़ीरा का कल निकाह हो गया है। बड़ी सादगी से बस चंद लोगों को बुलाया गया था। स्कूल के एक मेल टीचर ने ये खबर ज़ियान को दी थी। ज़ियान और अफ़ीरा के मेल-जोल और इशारेबाज़ियों से पूरा स्कूल ही वाकिफ़ था। ज़ियान रजिस्टर में नए साल का शेड्यूल लिख रहा था। रजिस्टर सर जाफ़िर की तरफ देखने लगा। गलत सुना होगा आपने सर, वो मेरी फियांसी है। हाँ, इसकी बहन के रिश्ते की बात शायद चल रही थी, लेकिन अगर निकाह इसका भी किया होता तो हमें ज़रूर बुलावा आता। ज़ियान अंदर से हिलसा गया था, लेकिन अफ़ीरा कभी इसे छोड़ ही नहीं सकती थी। दोनों एक-दूसरे से मोहब्बत करते थे, और ना तो अफ़ीरा से कभी कोई लड़ाई हुई थी और ना ही ज़ियान इसकी किसी बात के मनाफ़ी था। सब कुछ ठीक चल रहा था। अफ़ीरा ऐसा भला क्यों कर सकती थी? सर जाफ़िर ने इस्तहाई मुस्कुराहट से कहा, तुम्हारी फियांसी थी और तुम ही अनजान हो। हैरत है ज़ियान, मेरी अम्मा की आफ्ताब आंटी से अच्छी दोस्ती है। रात को निके पे मधु थी, सब कुछ देख कर आई हैं। बड़ी खुशी-खुशी रुखसत होकर गई है अपने हैंडसम दूल्हा के साथ। सर जाफ़िर की बात सुनकर वो मज़ीद स्कूल में रुक नहीं पाया था। दिल माही बेआब की तरह से मचल रहा था। बेयकीनी के आलम में सीधा यफ़ीरा के घर पहुँचा था। दरवाज़ा आफ्ताब बेगम ने खोला था। सामने ज़ियान को देखकर घबरा गई थी। वो साइड से अंदर दाखिल हो गया। सहन में अभी भी कुर्सियाँ इधर-उधर बिखरी रखी हुई थी। गुलाब की मुरझाई पत्तियाँ बिखरी हुई थी। जाफ़िर की जिस बात की तरदीद वो पूरे रास्ते खुद से करता आया था, इसकी सच्चाई आँखों से देखकर ज़ियान को लगा अगला साँस लेना मुश्किल हो जाएगा। पूरा वजूद किसी आग की भट्टी में जलता हुआ महसूस हो रहा था। अफ़ीरा बाहर आओ, सबको नज़रअंदाज करके ज़ियान चिल्ला कर बोला था। क्या काम है इफ़ी से, मुझे बताओ। आबदा बेगम वैसे तो घबराई हुई थी, लेकिन ज़ाहिर है सामना तो इन्हें करना ही था। ज़ियान ने गुस्से से इन्हें देखा। अफ़ीरा कहाँ है? शादी हो गई है इसकी। आबदा बेगम ने नज़रें चुरा कर कहा। कैसे हो गई शादी, जब वो मुझसे मनसूब थी? फिर चिल्ला कर बोला, बस कुछ हालात ऐसे हो गए थे, करनी पड़ी। हालात कौन सी क़यामत टूट पड़ी थी आप लोगों पर? हाँ, जो मुझे यूँ अनजान रख आपने अफ़ीरा की शादी कर दी। मैं मर तो नहीं गया था? फ़ोन पर बैलेंस डलवाने के लिए तो ज़ियान फ़ौरन से याद आ जाता आपको। मुझे क्यों अनजान रखा? वो भिड़ा पड़ा था। दिल चाह रहा था पूरे घर आग लगा के रख दे। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ। बस बेटा मजबूर थे हम। अफ़ीरा के अब्बा ने किसी से उधार लिया था, वक़्त पर चुका नहीं सके तो बदले में अफ़ीरा का निकाह करना पड़ा। आफ़ताब बेगम ने रोते हुए झूठी कहानी गढ़ी थी। मुझसे क्यों नहीं कही ये बात? किससे शादी की है इसकी? कहाँ है वो? बताएँ मुझे अभी इसी वक़्त इसकी कीमत चुका कर ले आता उसे वापस। ज़ियान इनकी आँखों में कहर बरसाते हुए देख रहा था। आफ़ताब बेगम तो बौखला सी गई थी। बेटा माफ़ कर दो मुझे और छोड़ दो इसका पीछा, भूल जाओ इसे। आप तो बेगम मिन्नत से माजिद पे उतर आईं। मुझे सिर्फ़ ये बताइए कि वो कहाँ है? ये मत समझिएगा कि आपके आँसू को देखकर मैं चुप बैठ जाऊँगा। मेरी मोहब्बत है, वो 5 साल से सिर्फ़ इसी को चाहा है मैंने। सवाल ही पैदा नहीं था कि मैं इसे छोड़ दूँ। जान से मार डालूँगा इस शख़्स को जिससे आप लोगों ने ज़बरदस्ती अफ़ीरा की शादी की है। ज़ियान के ज़ाहिराना अंदाज़ पे आबदा बेगम का रंग फ़क हो गया था। खुद तो अफ़ीरा रचा के जा चुकी थी और ज़ियान नामी एक आफ़त आबदा के हवाले कर गई थी। फिरे शह की तरह सुर्ख़ आँखों से इन्हें घूर रहा था। देखो मैं तुम्हारी मन्नत करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, भूल जाओ इसे। आफ़ताब बेगम ने इसके सामने हाथ जोड़े। आपको क्या लगता है आपकी बात मेरी हर अज़ियत को कम कर देगी? मेरी ज़िंदगी आप लोगों ने बर्बाद कर रख दी है और आप कह रही हैं भूल जाओ इसे भूल जाओ। आखिरी जुमला वो चिल्लाकर बोला। आफ़ताब बेगम का खून खुश्क हुआ था। वो अगर दुनिया के आखिरी कोने में भी हुई तो मैं ढूँढ लूँगा इसे, छोड़ूँगा नहीं इसे। मेरी मंगेतर थी वो, कैसे किसी और के साथ निकाह कर सकती है? कल दोबारा आऊँगा मैं, अफ़ीरा से कहिएगा अगर वो कल मुझसे यहाँ ना मिली तो खैर नहीं इसकी। ज़ियान की आँखों में खून उतरा हुआ था। उँगली उठाकर वो आफ़ताब बेगम को तंबिया करता हुआ चला गया। लेकिन ये खबर ऐसी थी कि पूरे मोहल्ले में फैल चुकी थी कि कई ख़वातीन ने ज़ियान की वालिदा से भी सवाल करने शुरू कर दिए थे कि बहन तुम तो कहती कि तुम्हारे बेटे से रिश्ता तय है फ़ीरा का। सारे मोहल्ले में दोनों मोटरसाइकिल पे खुलेआम दनदनाते फिरते हैं बेशर्मों की तरह, और वो लड़की तो रात किसी और के साथ निकाह करके चलती बनी। तुम्हारे बेटे से रिश्ता कब टूटा बताया भी नहीं तुमने।
ज़ियान की वादा खुद हैरान परेशान थी, लोगों को क्या जवाब देती। पहले ही बेटे की जिद ने इस आवारा लड़की को अपनाने पर मजबूर कर दिया था, अब इस लड़की की आवारगी ने किसी से नज़र मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा था। ज़ियान बड़े गुस्से से घर में दाखिल हुआ था। इसकी वालिदा भी पहले से गुस्से से भरी पड़ी थी। ज़ियान को देखकर गुस्से से बोली, मिल गया तुम्हें सुकून, सारे ज़माने में रुसवा करके रख दिया तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे, और वो तुम्हारी अफीरा कैसे तुम्हारे मुँह पर काले थोप कर गई है। कितना समझाया था तुम्हें ज़ियान के जो तुम्हारे साथ यूँ बेतकल्लुफ़ हो सकती है, वो न जाने कितनों के साथ होती होगी। लेकिन नहीं, तुमने तो माँ की एक नहीं सुनी, वो भी रो रही थी। ज़ियान चुप था। आज माँ की किसी बात का इसके पास जवाब नहीं था। चुपचाप अपने कमरे में चला गया। सर दर्द से फट रहा था, दिल की हालत इसे बुरी थी। अज़ियत ऐसी थी कि कतरा-कतरा जिस्म से जान निकाल रही थी। 5 साल अफ़ीरा के साथ गुज़ारे थे। क्या-क्या बातें नहीं हुई थी दोनों के दरमियान, मिलकर कितने ख्वाब दोनों ने देखे थे। कितनी बार वो इसका हाथ थाम कर मोहब्बत की बेकारियों मिलकर कितने ख्वाब दोनों ने देखे थे, कितनी बार वो उसका हाथ थामकर मोहब्बत की बेकरारियों का ज़िक्र कर चुकी थी, कितनी बार ज़ियान से एतराफ़ मोहब्बत कर चुकी थी। नहीं, मैं ये नहीं मानता, वो मेरे अलावा किसी की हो ही नहीं सकती। ज़रूर इसकी लालची माँ ने इसकी ज़बरदस्ती शादी की है, बेचारी मेरी तरह तड़प रही होगी। नहीं रहने दूँगा इसे किसी और की होकर, तलाक दिलवाऊँगा, वो सिर्फ़ मेरी है, मर जाएगी मेरे बगैर। मैं भी कब इसके बगैर जी सकता हूँ। सोचों की यलगार थी, ना ख़त्म होने वाला सोचों का तसलसल था ज़ियान के लिए। क्या बक रहा है तू इरफ़ान, मना किया था ना तुझे, अम्मा जी को जब पता चलेगा कि वो दादी बनने वाली है, वो काट खाने को दौड़ेंगी। अम्मा अल्लाह की मर्ज़ी है। इरफ़ान भला क्या जवाब दे सकता था, तो तू कहता ना हाथ नहीं लगाता इसे, मुझे लगता है किसी और पाप ने पाल लिया हो। ये सुनकर तो इरफ़ान का ज़ब्त ख़त्म हुआ था। अम्मा खुदा के लिए कुछ तो शर्म कर, इरफ़ान की बर्दाश्त की हद ख़त्म हुई थी। मेरी बीवी है, वह कितना दूर रह सकता हूँ इससे, अगर इस किस्म की बातों का आपके सामने यूँ जवाब देना पड़ता है अम्मा, तो शादी ही ना करती मेरी। यही कहकर वो कमरे से निकल गया। शब्बो माँ के बराबर में ही बैठी थी। देख रही हैं अम्मा, कमाओ बेटे के बदलते तेवर। अभी वो बच्चा दुनिया में आया नहीं तो ये हाल है, आपके सामने कैसे ज़बान चला कर गया है। बच्चा हो गया तो देखो कैसे बीवी बच्चे की सुनेगा। और एक बात याद रखना अम्मा, अगर इरफ़ान ने बीवी की मानी तो समझ लो कि फुरकान और बाकी दोनों छोटों से भी यही उम्मीद रखना। बड़े को देखकर ही वो भी रंग पकड़ेंगे। एक इरफ़ान को अगर काबू कर लिया तो दूसरों को भी सर उठाने की हिम्मत नहीं होगी। इरफ़ान आपकी बात को ऊपर रखेगा तो बाकी के भाई भी आपकी बात को अहमियत देने पर मजबूर होंगे। शीज़ा हमारी खिदमत करेगी तो आने वाली दूसरी बहुएँ भी वही रंग अपनाएँगी। वरना सोच लो अम्मा, जूती जैसी औकात रह जानी है तुम्हारी। शब्बू के मशवरे पर माँ को पत्थर पर लगते थे। कह तो ठीक रही है, पर अब क्या करूँ? शिज़ा को महारानी मनाने ज़रूरत नहीं है। काम वाली हटवा लो अम्मा, सारे घर की ज़िम्मेदारी शिज़ा पे डाल दो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। शब्बो को कहाँ बर्दाश्त था कि इसकी शादी को 2 साल बीत चुके थे, लेकिन औलाद का सुख नहीं मिला था और भाभी ने ये खबर चंद माह में सुना दी थी। इरफ़ान अपनी तरफ से शिज़ा का जितना ख़्याल रख रहा था, लेकिन इसके घर से जाते ही किचन के अलावा भी बहुत से काम शिज़ा के ज़िम्मे लग चुके थे। कपड़े धोकर छत पे ले जाकर इसे रस्सी पर डालने थे, जो इसके लिए इस मरहले में मुनासिब नहीं था। इसलिए वो अम्मा से कुछ नहीं कहती थी, लेकिन इनकी नज़रों से बचकर छोटे देवर सुफ़ियान से कह देती थी कि कपड़ों से भरी बाल्टी छत पर रख दें। वो भी इसकी कई मोटे काम कर देता था। महीना मज़ीद गुज़र गया था। शब और अम्मा जी की तरकीबें नाकाम हुई थी। शिदा दवाएँ वक़्त पर लेती थी, फिर इरफ़ान छुप-छुपा कर बहुत कुछ इसे खाने के लिए कमरे में दे जाता था, वरना फल तक तो इनकी अम्मा जी के कमरे में होते थे। जिसने खाने अम्मा के सामने बैठकर खाए, बहू को खाने की इजाज़त नहीं थी। शब्बो ने फिर वो ज़ख़म शिज़ा को दिया कि जिसकी उम्र भर भरपाई नहीं हो सकी। शिज़ा कपड़े फैलाकर खाली बाल्टी सीढ़ियों से नीचे ला रही थी कि सिर्फ़ सरफ़ का पानी सीढ़ियों में गिरा हुआ था। पाँव ऐसा फिसला कि संभल ही नहीं पाई, ऊपर से नीचे तक गिरती ही चली गई। फुरकान घर पर ही मौजूद था। भाभी को दर्द से तड़पता देखकर ज़रनिश को ज़बरदस्ती अपने साथी और डॉक्टर के पास ले गया। इरफ़ान को भी खबर कर दी, लेकिन अम्मा जी और शब्बू के सर पर तो जूँ तक ना रेंगी, बल्कि इनकी तो दिली मुराद पर आई थी। इरफ़ान परेशान सा खड़ा था जब डॉक्टर ने इसे कहा कि इसकी बीवी की कंडीशन बहुत ख़राब है, बस इसकी जान बच पाई है और मज़ीद वो कभी दोबारा माँ भी नहीं बन पाएगी। इरफ़ान तो यूँ था जैसे दिमाग सोचने समझने के काबिल ही नहीं रहा हो। शीज़ा बेहोश थी, इसे होश ही नहीं आ रहा था। फुरकान ही भाग दौड़ में लगा हुआ था।
ज़रा बेगम, एजाज साहब, फ़ारूक अहमद सभी हॉस्पिटल पहुँच चुके थे। 2 दिन बाद ज़िंदगी की मौत की जंग लड़ने के बाद मौत को हरा पाई थी, लेकिन अपना सब कुछ हारने के बाद शीज़ा को जब मालूम है कि बेऔलादी उम्र भर के लिए मिल चुकी है, तो रो-रो के बेहाल हुई थी। इरफ़ान के पास तो तसल्ली के 2 लफ्ज़ तक नहीं थे। बीवी को बोलने के लिए अपना एक गम ख़ामोशी से सह रहा था। शीज़ा को उसकी वालिदा के साथ भेजकर जब घर आया, तो माँ ने अपनी सुनानी शुरू कर दी। देख लिया माँ की नाफ़रमानी का अंजाम, कैसी इस दिन ज़बान चलाई थी तुमने मेरे सामने, मेरा दिल दुखाया था। देख ले इरफ़ान, अल्लाह ने तुझे बेऔलाद कर दिया। दुखे हुए दिल पर माँ ने वो चोट दी कि इरफ़ान गंग सा रह गया। ये समझा कि इसे माँ की नाफ़रमानी पर बद्दुआ लग गई है। रो धो कर माँ से माफ़ी-तलाफ़ी करने लगा। सुबह 9 बजे अलार्म की चिंगारती आवाज़ पे अफ़ीरा की आँख खुली थी, जो इसके बिल्कुल कान के पास बज रहा था। पहले तो इस अलार्म को इसने बंद किया, फिर बड़ी बेज़ारी से वो उठी थी। कमरा खाली था। वॉशरूम में शावर की आवाज़ से समझ गई कि अलार्म किसने इसके कान के पास रखा होगा। बड़ी खौफ़ से घड़ी की तरफ देखा, जो फ़िक्स 9 बजा रही थी। ये कोई वक़्त है उठने का? कमरे का एसी भी बंद था, लेकिन माहौल ऐसा था कि गर्मी नहीं थी। और फिर वह दोबारा लेट गई और आँखें भी बंद कर लीं। नौफ़िल तौलिए से सर खुश करता हुआ वॉशरूम से निकला था, लेकिन बेगम साहिबा अभी भी बिस्तर छोड़ने को तैयार नहीं थी। नौफ़िल ने अलार्म को बंद देखा तो समझी कि मुकर्रर वक़्त पर चलकर बंद हो चुका है। वो अफ़ीरा के पास आकर खड़ा हो गया। "अफ़ीरा जी, हमारे घर सुबह हो चुकी है, इसलिए बिस्तर छोड़ें और तैयार हो जाएँ। वसी और ज़ुनैरा भाभी भी पहुँचने वाले होंगे। क्या सोचेंगे कैसी सुस्त दुल्हन है मेरी?" अफ़ीरा ने आँखें खोलकर इसे देखा था, जो बड़ी फ़रेब मुस्कुराहट से देख रहा था। "हमारे यहाँ तो न्यू कमर को कोई इतनी सुबह-सुबह डिस्टर्ब नहीं करता," वो बेज़ारी दिखाते हुए बोला। "लेकिन हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। उठो, जल्दी से तैयार हो जाओ, बाहर निकलो, भाभी के साथ वक़्त गुज़ारो। कमरे में बैठे-बैठे बोर नहीं हो जाओगी तुम?" ये कहकर इसने अलमारी खोली और अपनी पसंद का एक ड्रेस निकाल कर बेड पे रखा था। मैरून कलर का हल्का-सा फैंसी सा सूट था। "ये पहन लो, बहुत सूट करेगा तुम पर।" बालों का जूड़ा बनाते हुए उठकर खड़ी हो गई। "आई एम सॉरी डियर, हैवी कपड़े मैं सिर्फ़ अपनी चॉइस की पहनती हूँ।" अफ़ीरा ने अपनी बात को मुकद्दम रखते हुए अलमारी खोली, अपनी पसंद का लिबास निकाला और वॉशरूम में चली गई। कुछ पल तो नौफ़िल वॉशरूम के दरवाज़े को देखता रहा, फिर कंधे उचकाकर बात को नज़रअंदाज करते हुए कमरे से निकल गया। मायरा किचन में थी, मुलाज़िमा के साथ मिलकर नाश्ता बनाने में मसरूफ़ थी। आयज़ा और मुनज़्ज़ा टेबल पर बैठी थी, 2 दूध के कप सामने पड़े थे। नौफ़िल भी इनके पास जाकर बैठ गया। "चाची, दुल्हन कहाँ है?" मुनज़्ज़ा बस अफ़ीरा की मुंतज़िर थी। "आ रही हैं, तुम पहले ये दूध ख़त्म करो।" सामने रखा दूध का कप इसने पकड़कर मुनज़्ज़ा के मुँह पर लगाया था। मायरा किचन से फ्राई अंडों की प्लेट लेकर निकली थी। "अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी है आपकी तबीयत?" वालेकुम सलाम, कुछ बेहतर है। टेबल पर फ्राई अंडे रखते हुए मायरा ने जवाब दिया, बाजी जी पराठे कितने बनाऊँ?" अंदर किचन से मुलाज़िमा की आवाज़ में फिर से किचन की तरफ गई थी। "आ रही हूँ मैं, दुल्हन के मैके से इसके घरवालों ने आना है, अभी और बनाओ।" अफ़ीरा कमरे से निकली तो मायरा की बात सुनकर याद आया, मैके से तो अभी तक ना कोई आया था, ना कोई कॉल आई थी। वो टेबल पर आकर बैठ गई। मुनज़्ज़ा इसे गौर से देखने लगी। रात वो सजी-सवरी दुल्हन थी और इस वक़्त दूसरे लिबास में बहुत ही अलग-अलग सी लग रही थी। "चाचू, ये आपकी दुल्हन है?" पहली नज़र तो मुनज़्ज़ा बहुत अलग-सी लगी थी। "क्यों, तुम्हें नहीं लग रही?" नोबेल अब अपने लिए प्लेट में फ्राई अंडा डालते हुए पूछा। "चाचू, रात वाली दुल्हन ज़्यादा प्यारी थी।" मुनज़्ज़ा की बात पर अफ़ीरा ने इसे घूर कर देखा था। "हाँ, मैं भी सोच रहा था कि रात वाली ज़्यादा प्यारी थी," नौफ़िल ने हँसते हुए कहा। "बड़ी ही बदतमीज़ बच्ची है," नफ़ीसा ने दिल में सोचा। "बड़ी बात है मुन्नी, यूँ नहीं कहते। बुरी बात है मुन्नी, यूँ नहीं कहते।" मारिया टेबल पर पराठे रखते हुए बोली, फिर अफ़ीरा की तरफ मुस्कुराकर देखा, खुद ही सलाह में पहल की। इसके पास आकर इसे प्यार नहीं दिया, पता नहीं क्या सोचेगी क्या नहीं। अफ़ीरा ने ज़बरदस्ती मुस्कुराहट सजाकर सलाम का जवाब दिया था। बाहर की बेल हुई थी, बस ये आया होगा। नौफ़िल फ़ौरन से उठकर बाहर आ गया था। "अफ़ीरा, तुम्हारे घर से कौन-कौन आ रहा है तुमसे मिलने?" कुर्सी पे बैठते हुए मायरा ने अफ़ीरा से पूछा। "मालूम नहीं, मेरी बात नहीं हुई।" "अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, तुम नाश्ता करो।" अफ़ीरा ने इसके सामने खाली प्लेट रख दी ताकि जो चाहे वो खुद ले ले। वसी और ज़ुनैरा नौफ़िल के साथ अंदर दाखिल हुए थे। ज़ुनैरा ने मायरा के पीछे खड़े होकर दोनों बाहें मायरा के गले डाल दिए। "कैसी तबीयत है भाभी?" ज़ुनैरा मायरा को प्यार से लगाते हुए पूछने लगी। मायरा से वो बहुत प्यार करती थी और वो नज़र भी आता था। ऐसी चाहत नौफ़िल अफ़ीरा से भी चाहता था कि वो मायरा से करे। बिल्कुल ठीक हूँ, चलो आओ, तुम्हारे लिए चकोर पराठे मैंने खुद बनाए हैं। तुम पूछ रही थी ना कि कैसे बनते, अब खाकर बताओ। मायरा भी इसे अपनी छोटी बहनों की तरह चाहने लगी थी। आपने क्यों क्यों स आपने क्यों खुद सब कुछ बनाया भाभी? मैंने वसी को ठीक मुँह धोने नहीं दिया था, इतनी जल्दी मचाई कि चलो जल्दी मुझे जाकर नौफ़िल भाई की बेगम के लिए नाश्ता तैयार करना है और आप हैं कि सब करके बैठी हुई हैं।
ज़ुनैरा ने मायरा को खफ़ी दिखाई थी, फिर अफ़ीरा से हाथ मिलाया। वसी ने मुश्तकर सबको सलाम किया और नौफ़िल के साथ ही टेबल पर बैठ गया। सबसे पहले गरम-गरम पराठा अपनी प्लेट में रखा था। वाह भाभी, पता, मैं नौफ़िल हर बार ये कहता हूँ कि तुम भाभी के मामले बड़े लकी हो। तुम्हें भाभी बहुत अच्छी मिली। कसम से जितने मज़े का खाना मैंने आपके घर खाया है, ज़ुनैरा न भी नहीं बनाती। अचारी आलू इसने प्लेट में डाला और पराठे के साथ खाने लगा। ज़ुनैरा भी मायरा के साथ बराबर में बैठ गई। ये तो है, मैं वाक़ई बहुत लकी हूँ, मेरी भाभी दुनिया की बेस्ट भाभी हैं। नौफ़िल के मुँह से मायरा की तारीफ़ अफ़ीरा को बुरी-सी लगी थी। तुम बीवी के मामले में भी लकी हो नौफ़िल, माशाअल्लाह से अफ़ीरा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी है। नवाज़िन ने मुस्कुराकर अफ़ीरा को अपनी बातों में शामिल करना चाहा, लेकिन वो बेनियाज़ी से नाश्ता करती रही। नौफ़िल ने मज़ाक से अफ़ीरा की तरफ देखकर कहा, अच्छा, वैसे इसे देखकर मुझे अपनी खुशनसीबी पर शक सा ही होता है। नौफ़िल की बात अफ़ीरा का निवाला हाथ में ही रुका था और गुलदस्ता एक तेज़ नज़र इसने नौफ़िल पर डाली थी। वसी बड़ी मुश्किल से हँसी रोक रहा था। नौफ़िल के मिज़ाज से वाकिफ़ था। पास भी आ जाओ नौफ़िल। मायरा ने पहले नौफ़िल को आँखें दिखाई, फिर मुस्कुराते अफ़ीरा से मुख़ातिब हुई। अफ़ीरा, इसकी बातों को संजीदगी से बिल्कुल मत लेना। हर वक़्त इसे मज़ाक करने की आदत है। जब मेरी शादी को हुई थी तब कुछ वक़्त मैं भी परेशान हुई थी। ऐसा संजीदा होकर मज़ाक करता था कि सामने वाला ये समझता है कि तंज़ कर रहा है। वो तो ज़रिया आप थे जो मुझे इसके मिज़ाज के बारे बताते रहते थे। अब तो ये कुछ कहने के लिए लब भी खोले तो मैं समझ जाती हूँ कि क्या चाहता है। मायरा ने अफ़ीरा के अस्पाट से चेहरे को देखकर समझा कि शायद वो बात को संजीदा ले रही है। वाह! बड़ी अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों में, जो एक-दूसरे के इशारे भी समझ जाते हैं। ऐसी मिसाली मोहब्बत मैंने आज तक देवर-भाभी में नहीं देखी। एक इस्तेहाई हँसी मुस्कुराहट के साथ अफ़ीरा ने गोया रात से अब तक की भड़ास निकाली थी। मायरा चुप सी हो गई थी, लहज़ा बड़ा कांटदार सा था। चलें अब देख लीजिएगा, बल्कि मैं तो कहती हूँ अफ़ीरा भी लकी है, जो मायरा भाभी जैसी जेठानी इसे मिली है। ज़ुनैरा ने अफ़ीरा को जवाब दिया, मैं ज़रा थक गई हूँ, आप लोग माइंड ना करें तो जाकर आराम कर सकती हूँ। वो टिश्यू से हाथ साफ करती हुई बोली, हाँ जाओ आराम करो तुम। मायरा ने जवाब दिया था। अफ़ीरा उठकर अपने कमरे में चली गई। तो फिर बस खामोशी से इसके चेहरे के उतार चढ़ाव देख रहा था। इसकी बातें और लहजे पे कुछ हैरान भी था। मायरा और ज़ुनैरा बर्तन उठाकर किचन में चली गई थी। वसी ने ठंडी आह भरी, क्या बात है नौफ़िल, बेगम साहिबा का मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा। वसी ने अफ़ीरा की बेमरवती को महसूस किया था। खैर छोड़ो, ये बताओ कि रात तक यहीं रुकोगे? नौफ़िल ने बेनियाज़ी दिखाते हुए मौज़ू बदला था। रात से इसकी लड़की से अलग से तेवर देख रहा था। जैसी तारीफ़ बाप ने की थी, वैसी कोई बात इसमें नहीं थी। अफ़ीरा ने कमरे में आते ही अपने पर्स से मोबाइल निकाला और माँ का नंबर डायल किया। आबदा बेगम ने फ़ोन उठाया। अम्मा, शादी करके क्या जान छुड़ाई तुमने मुझसे? नाश्ता लेकर नहीं आना था? सब लोग सुबह से बस यही सुना रहे हैं मुझे। फिर बात वो तड़क कर बोली थी, मेरा बस चले तो ज़हर ला कर दे दूँ तुझे। अरे वो कमबख्त ज़ियान आया था, खूब तमाशा लगा कर गया है। कह रहा था अफ़ीरा के मियाँ को जान से मार दूँगा। अफ़ीरा की लापरवाही हूँस थी। वो और उसकी धमकी, अम्मा कागज़ का शेर है और कुछ नहीं करेगा। अफ़ीरा के लिए कोई बात बहुत मामूली सी होती थी। हाँ बेटा, कल घर आओ और आकर इस कागज़ के शेर की पुर्तियाँ भी देख लो। तुमने ही ज़ियान नाम की मुसीबत को गले डाला था, आकर ख़त्म करो ये मामला। आफ़ताब बेगम ने अफ़ीरा से सख्त लहजे में बात की थी, रात को वलीमे के बाद घर ही आ जाऊँगी तुम्हारे साथ, कर लूँगी इससे भी बात। अफ़ीरा ने लापरवाही ज़ाहिर की थी। रात को वलीमे के बाद आफ़ताब बेगम के साथ सिर्फ़ अफ़ीरा ही मैके गई थी, नौफ़िल साथ नहीं गया था। आफ़रीन ने चंद दिन अपना ये रवैया मज़हर के साथ ठीक ही रखा था। इसकी किसी बात से इख्तिलाफ़ भी नहीं किया था, इसलिए मज़हर का रवैया भी काफ़ी हद तक बेहतर हो गया था। एक बार इसने मज़हर से पूछ ही लिया, मतलब ऐसा क्या हुआ था मायरा के साथ जो वो ऐसी हो गई? तुम क्या करोगी जानकर? क्यों मैं गैर हूँ आपके लिए? आफ़रीन की बात कुछ देर तो मज़हर चुप रहा, फिर कुछ सोच कर बात शुरू की। मेरी शादी मारिया से हम दोनों की पसंद से हुई थी। 2 साल बहुत खुशबाश गुज़ारे थे हमारे। 2 साल बाद ही मारिया उम्मीद से हुई, लेकिन 4 माह बाद ही बे-औलाद की खबर सुनने को मिल गई। इसका मिसकैरेज हो गया था। ऐसा 3 साल तक होता रहा। हालाँकि मैंने किसी चीज़ और किसी इलाज में कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन फिर भी हर बार मायरा के साथ यही होता था। एक औरत के लिए ये लम्हे भी अज़ियतनाक होते थे कि वो हर बार औलाद होने उम्मीद लगाए और चंद माह बाद ही इसे एक ज़हनी अज़ियत से गुज़रना पड़े। फिर लोगों की अजीब व गरीब बातें शुरू हो गई कि अब तो मारिया को कभी औलाद हो ही नहीं सकती। ऐसी औरत की परछाई किसी
मामला उसके ऊपर पड़ जाए तो उसका बच्चा नहीं बचता। मारिया को अजीज समझ कर हर एक इससे दूर रहने लगे थे। मारिया बहुत ज़्यादा तन्हाई का शिकार रहने लगी थी। ख़वातीन ऐसी हक़ारत से पेश आने लगी थी जैसे बेऔलादी इसी का बहुत बड़ा ऐब है। अपने बच्चे को इससे दूर रखती थी, छोटे बच्चों को मारिया से छुपाए-छुपाए रहती थी। मैंने अपने दिल को समझाया था कि अब बाप बनने की ख्वाहिश बेकार है, लेकिन मायरा के अंदर ये बात शिद्दत पकड़ने लगी थी। हर वक़्त वो सिर्फ़ इसी बारे में सोचने लगी थी। लोगों की बातों को सोच-सोच से रोती रहती थी, डिप्रेशन का शिकार रहने लगी थी। वो दूसरों के बच्चों को पकड़-पकड़ कर प्यार करने लगती, इन्हें अपने सीने से लगाने लगती और औरतें ये समझती कि शायद ये पागल हो गई है, हमारे बच्चों को न जाने क्या कर देगी। क्योंकि मारिया के प्यार करने के अंदाज़ में जुनून का अंश ज़्यादा होता था। पता नहीं क्यों वो छोटे बच्चों को देख कर काबू में नहीं रहती थी। बस इन्हें पकड़कर सीने से लगा लेती, बेतहाशा चुमने लगती। मुझे किसी दोस्त ने पाक बीबी के बारे में बताया तो मारिया को वहाँ ले आया, लेकिन मायरा ने इसे ढोंगी कह दिया। बस फिर क्या था, मायरा को पागलपन के दौरे पड़ने लगे। पाक बीबी की बददुआ लग गई। फिर इसके सर पर वो दर्द शुरू हुआ कि चिल्लाने और तड़पने लग जाती थी। वो नतीजन ये बीमारी लग गई। आफ़रीन बहुत डर गया हूँ मैं, तुम प्लीज़ इनकी बात मान लो। बस एक बार हमारा बच्चा ठीक से हो जाए, मैं खुद इन्हें छोड़ दूँगा। बहुत अरसे बाद मैंने ये खुशी की खबर सुनी है। ठीक है, मैं आपकी हर बात मान लूँगी, तावीज़ भी मैं खुद पाबंदी से पी लिया करूँगी। अब तो खुश है ना? आफ़रीन के गुरे से फ़ौरन से मान जाने पर मदर खुश-सा हो गया था और मुतमईन भी यही आफ़रीन चाहती थी और इसने सारे तावीज़ मदर से लेकर अलमारी में रखे, जहाँ रख दिए और मज़े से ये कहते तावीज़ वाला पानी पी रही है। मारिया के पास भी बैठने लगी थी, बातें करती थी। जब वो इससे पीछे होने की कोशिश करने लगी तो कहती कि मुझे पापा भी ने कहा है मारिया के पास जाने से मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन मज़हर को इस बात से आफ़रीन ने अनजान कर रखा था। चाहती थी कि एक बात वो साहिबा औलाद हो जाए, फिर हकीकत बताएगी कि कहती किसी की ज़िंदगी और मौत की ज़मानत नहीं होते, औलाद का ना होना औरत को अछूत नहीं बना देता है। अफ़ीरा को ना तो अपने रवैये पे कोई पछतावा था, ना ही इस बात पे अफ़सोस कि इसने ज़ियान के साथ क्या किया है। मुँह दिखाई के कंगन आबदा बेगम ने अफ़ीरा के हाथ से तुड़ाकर हाथ में लेकर देखे ताकि अंदाज़ा लगा सके वज़न कितना है। वो अफ़ी कंगन 3 तोले के तो पक्के हैं। अजीब-सी चमक थी आबदा बेगम की आँखों में। अफ़ीरा ने फ़ौरन माँ के हाथ से कंगन लेकर दोबारा हाथ में पहने थे। अभी तो मेरा ज़ेवर नौफ़िल की भाभी के पास है, कह रही थी कि तुम घर आ जाओ तो तुम्हारी अमानत तुम्हारे हवाले कर दूँगी। अफ़ीरा के पास के पाँव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। हाय फ़ी तेरी किस्मत पे तो मुझे रश्क आता है। आबदा बेगम बेटी की चालाकी को खुशकिस्मत से तशबीह दे रही थी। अफ़ीरा यूँ इतरा रही थी जैसे सल्तनत की शहज़ादी हो। मैंने अपनी किस्मत खुद बनाई है अम्मा, अल्लाह ने दिमाग दिया है किस लिए है? इसलिए तो दिया है कि बर वक़्त इसका ठीक इस्तेमाल करो, दुनिया को मुस्तर्द कर लो, छीन लो अपने हिस्से की खुशियाँ। सामने बैठी अबीरा एक ताज्जुब की नज़र अफ़ीरा के चेहरे पर डाली, जहाँ सिर्फ़ गुरूर था, फिर नज़र झुका ली। दिल से होक सी निकली थी। अल्लाह ये कौन-सा इंसाफ़ है जो धोखा दे, झूठ बोले, गुनाह की राह को चुन ले, वही दुनिया हमें ऐश-ओ-इशरत करता नज़र आता है। इसे सब कुछ इसकी मंशा के मुताबिक मिल जाता है। अच्छा घर, अच्छा शौहर, गाड़ी, ज़ेवर, क्या कुछ नहीं है फ़ी के पास। अपिया ने ना कभी काम को हाथ लगाया, ना घर सँभाला, ना बाप की इज़्ज़त की परवाह की है। गैर लड़के के साथ कहाँ-कहाँ नहीं घूमती फिरती है। सारा मोहल्ला जानता है अपिया की फ़ितरत को, लेकिन क्या कमाल का नसीब पाया है, एक मैं हूँ। अपिया से ज़्यादा खूबसूरत घर को भी मैं सँभालती हूँ, छोटे भाई को भी सँभाला हुआ है। आज तक कभी किसी लड़की की मुस्कुराहट का जवाब भी मुस्कुराहट से नहीं दिया। बदले में मुझे क्या मिल रहा है? मेरा तो वो हाल है जिसने होमवर्क पूरा किया, इसे छुट्टी ना मिली। मेरी जान तो अब भी इन कामों से ना छूटी और अपिया ने शादी से पहले भी ऐश की और अब ऐश ही कर रही है। अबीरा खाना तो चढ़ाओ जाकर, बहन को भूख लग रही होगी। आफ़ता बेगम को बस अफ़ीरा की फ़िक्र थी। अबीरा कमरे से बाहर निकल गई। डोर बेल बजी तो अब दरवाज़ा अबीरा ने ही खोला था। सामने ज़ियान खड़ा था। एक दिन में इसका चेहरा उतर सा गया था, बिगड़ी सी हालत में था। तब आँखें बताई थी कि गुज़िश्ता एक रात किस घर में गुज़ारी है। अफ़ीरा कहाँ है? लहज़ा तक टूटा हुआ था। अबीरा पीछे हट गई। अंदर ही है। अबीरा ने कोई बहाना नहीं किया था। वो अंदर दाखिल हो गया, फिर वहीं से बुलंद आवाज़ लगाई, इफ़ी आबी ज़ियान भाई आए हैं। अंदर बैठी अफ़ीरा के साथ-साथ आबदा बेगम भी चौंकी थी। तो पल के लिए अफ़ीरा की जान भी निकली थी। पता नहीं क्या हंगामा करेगा, लेकिन मैंने खुद को नॉर्मल किया। हाय अबीरा की कमकली पर मैं क्या कहूँ, बाहर से डाल देती इसे। आबदा बेड से उठकर नाक चढ़ाए नागवारी से कमरे से बाहर जाने लगी। अम्मा मैं खुद बात कर लूँगी, इससे क्या कर लेगा? वो ज़्यादा से ज़्यादा बुरा भला ही समझेगा ना, मुझे समझा ले।
समझ लें अफीरा खुद को ज़ियान का सामना करने के लिए तैयार कर चुकी थी। हल्की फैंसी से लिबास के साथ इसने हल्का-सा मेकअप भी किया था। ड्राई शुदा घुंघराले खुले बालों को इसने पीछे किया, दुपट्टे वैसे ही गले में था और उठकर बाहर आ गए। सामने ही ज़ियान खड़ा था। आफ़रीन अब मायरा के पास घंटों बैठकर बच्चों की बातें करने लगी थी। दोपहर का खाना भी इसके साथ खाती थी। मारिया अब खुश रहने लगी थी। एल्बम में लगे छोटे बच्चों की तस्वीरें भी आफ़रीन को दिखाएँ। वार्डरोब से छोटे बच्चों के कपड़े और खिलौने भी बड़े इश्तियाक से देखे। वो भी हर चीज़ दिलचस्पी से देखती थी। वक़्त तेज़ी से गुज़रने लगा था। हॉस्पिटल में एडमिट होने से मारिया से गले लगकर मिलकर गई थी। मारिया मेरे लिए दुआ तो करेंगी ना? दिल में खौफ सा था, पहली बार कुछ डर सा महसूस हो रहा था। डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया था। क्यों नहीं करूँगी? मैं तो हर सांस के साथ तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ। अल्लाह तुम्हें मेरी बदबख्ती से बचाए रखे। मारी ने आंसू से झलमती आंखों से आफरीन को देखते हुए कहा। आफरीन ने इसके सर पर बूसा लिया था। किसने कहा आप बदबख्त हैं? आप तो बहुत खुश नसीब है। पता है मारिया, मैंने सुना जो बच्चे दुनिया में आने से पहले ही अल्लाह के पास चले जाते हैं, वो क़यामत के रोज़ अपने माँ बाप को जन्नत में ले जाने का सबब बनते हैं। अल्लाह से अपने वालिदैन के लिए सिफारिश करते हैं। जब एक जानदार वजूद एक औरत के जिस्म में परवरिश पाने लगता है, तो इसी वक्त अल्लाह पाक इस बच्चे के नसीब में लिख देते हैं कि इस बच्चे को कितना रिस्क मिलेगा, कितनी सांसें वो दुनिया में लेगा। जब ये सब अल्लाह ने पहले तय कर रखा है और ज़िंदगी और मौत का फैसला अल्लाह ने किसी के हाथ में नहीं दिया, हम बेख्तियार हैं। मारिया, चाह कर भी एक सांस भी किसी को ज़्यादा नहीं दे सकते, ना ही किसी से इसका निवाला छीन सकते हैं। कुरान की आयत का मफहूम है कि अल्लाह जिसे चाहे बेटा दे, जिसे चाहे बेटी दे, जिसे चाहे दोनों अता करे और जिसे चाहे बाँझ रखे। जब ये बात अल्लाह ने अपने इख्तियार में ले ली, तो फिर मैं और आप तो कोई ताकत नहीं रखते। फिर अल्लाह अपने नेक बंदों को ये आज़माता है ताकि इनका मुकाम बढ़ जाए। जो तकलीफ़ आज़माइश आपने सही है, वो तकलीफ़ देह एक औरत के लिए, लेकिन अल्लाह की नज़र में आपका क्या मुकाम है, ये कोई नहीं जानता। बस इसलिए मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मारिया एकटक आफ़रीन को देख रही थी। इसकी बातें सुन रही थी। आज तक तो सिर्फ़ इसे ये बताया गया था कि मनहूस है, इसका ज़ाहिर किसी हामिला औरत है, इसकी औलाद छीन लेगा, वो अछूत है, बदबख्त है, तभी अल्लाह ने इसे औलाद जैसी नेमत नहीं दी। वो यही समझती रही, इसकी बदबख्ती ही अब तक इसके बच्चों को खा गई है। औरतें इससे दूर भागती थी, इसे देखकर एक-दूसरे से इसके मुतालिक बातें करती थी। कभी किसी ने ये नहीं बताया कि ये कोई बदबख्ती नहीं, अल्लाह की आज़माइश है। मारिया ने आफ़रीन के जाते ही वज़ू किया था, नमाज़ अदा की, पहले तो अल्लाह से तौबा की, फिर आफ़रीन के लिए दुआ करने लगी। लोगों की बातों का असर लेकर किस मुकाम तक आ पहुँची थी, किसी का क्या बिगड़ा था, कुछ भी तो नहीं, अपना नुकसान ही कर बैठी थी। दूसरी जानिब आफ़रीन जब ऑपरेशन थिएटर में रही, मज़हर को एक पल चैन नहीं आया था। नर्स के बाहर आते ही वो बड़ी बेताबी से इसकी जाने पड़ा था। मुबारक हो मिस्टर मज़हर, बेटा हुआ है। वो और आपकी मिसेज़ भी ठीक है। मज़हर को अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा था। कुछ देर में एक नन्हा-मुन्ना वजूद नर्स नर्स ने इसे पकड़ाया था। खुशी की इंतहा क्या होती है, इस वक़्त कोई मदर से पूछता। अपनी औलाद को कभी अपनी गोद में लेगा, ये उम्मीद ही वो खो बैठा था। समझ नहीं पा रहा था अपनी खुशी का इज़हार कैसे करे। आँखों से आँसू जारी थे, बेटे को सीने से लगाकर फूट-फूट कर रोने लगा था। कहाँ मालूम था कि ये दिन भी ज़िंदगी में आएगा। नौफ़िल अफ़ीरा को लेने कब जाओगे? मायरा ने नाश्ते के बाद नौफ़िल से पूछा था। रहने दें इसे कुछ दिन वहीं। नौफ़िल का अंदाज़ बड़ा उकताया हुआ था। क्या मतलब, क्या एक दिन की दुल्हन से भी आते आते ही लड़ पड़े हो? नौफ़िल के बदले हुए अंदाज़ को देखकर मायरा ने पूछा, जिस पर बेज़ारी का असर वाक़ई था। ऑफ़िस से हफ़्ते भर की छुट्टी से मिली थी, लेकिन अफ़ीरा का मिज़ाज नौफ़िल को बिल्कुल नहीं जच रहा था। या शायद वो भी रमशा जैसी अकड़ दिखा दिखा रही थी। चलो, रमशा को तो फिर पैसों का ज़हम था, इस लड़की की अकड़ तो नौफ़िल को बिल्कुल हज़म नहीं हो रही थी। वो सोफ़े में बैठा दोनों बच्चियों को अपने साथ दाएँ-बाएँ बिठाए कार्टून दिखा रहा था। पाँव सामने टेबल कर कर रखे तकरीबन आधे से ज़्यादा लेटा हुआ था। नहीं भाभी, मैंने क्या करना है, बस मुझे कुछ अजीब-सी मिज़ाज की लड़की लग रही है। अब्बा तो इसके कुछ और बता रहे थे, लेकिन अब तक तो बहुत एटीट्यूड दिखा रही है, जैसे पता नहीं कहाँ की महारानी हो। और आपको पता है, मुझे ऐसी लड़कियाँ एक आँख नहीं भाती। अभी चुप हूँ, वरना आप जानती हैं मुझे 2 मिनट में साफ़ करना मुझे अच्छे से आती है मुझे। आँखों में गुस्से लिए वो बोल रहा था। मायरा इसके बराबर बैठ गई, तो वो भी उठकर सीधा होकर बैठ गया। मायरा ने गौर से इसे देखा, गुस्से में भी लग रहा था। फ़ीरा का मिज़ाज तो मायरा को भी अजीब-सा लगा था, लेकिन अगर वो भी यही बात नौफ़िल के सामने दोहराती तो पहले से ही गुस्से का तेज़ था, इसलिए बात को रसाने से समझाने लगी। नौफ़िल, हर इंसान को हमसफ़र, हममिज़ाज तो नहीं मिलता ना, बस प्यार अपनाया से इसे हममिज़ाज बनाना पड़ता है। अब मैं क्या थी जब मेरी शादी हुई थी, कितनी लड़ाइयाँ होती थी हमारी, याद है ना? मायरा की बात पर नौफ़िल मुस्कुराने लगा। पिछला वक़्त
याद आया था। हाँ, ये तो है, लेकिन मैंने कब हार मानी थी आपसे, वो तो भाई ही थे। ये कहकर ज़रिए आपकी अदा ने गोया लफ्ज़ गुम कर दिए थे। नौफ़िल को हर लम्हा ज़रिए आपकी कमी महसूस होती थी। इसकी हर बात में ज़रिया ज़रूर शामिल होता था। यही बात तुम्हें भी समझनी चाहिए नौफ़िल। अभी अफ़ीरा अपने घरवालों से दूर हुई है, एक अलग माहौल की है, यूँ फ़ौरन से तो ठीक नहीं हो जाएगी। मुझे भी वक़्त लगा था। दरिया ने बहुत आहिस्ता-आहिस्ता मुझे बदला था, बहुत प्यार से, बहुत अपनाई से इनका कहा। एक-एक लफ्ज़ जैसे मेरे अंदर उतारता चला गया। ज़रिया आप होते तो तुम्हें समझाते कि घर कैसे बसते हैं, लेकिन मायरा ये कहकर चुप सी हो गई। नौफ़िल ने मायरा की आँखों की नमी देखी तो हार मानकर बोला, आप बताएँ क्या करूँ? जैसा आप कहेंगी वैसा ही कर लूँगा भाभी, लेकिन मेरे और भाई के मिज़ाज में फ़र्क भी तो है ना। मैंने बड़े वाज़ेह तौर पे अफ़ीरा को बताया कि मेरी फ़ैमिली मेरे लिए क्या अहमियत रखती है, लेकिन मुझे नहीं लगता इसके भेजिए में कुछ बैठा होगा। जैसे वो नाश्ते के वक़्त लाताल्लुक़ सी बैठी थी, ज़हर लग रही थी मुझे। नौफ़िल को कल सुबह का अफ़ीरा का रवैया याद आया तो लहजे में तल्ख़ी सी घुल गई। मायरा ने इसे घूर कर देखा। नौफ़िल बुरी बात है, अभी तुम्हें समझाया ना ये अहमियत है मेरी बात की। तुम्हारी नज़र में मायरा तो नौफ़िल के बिगड़े तेवर देखकर घबरा सी गई थी। बहुत अहमियत है इसलिए चुपचाप बर्दाश्त कर लिया, वरना 1 मिनट में इसे ये पावर करवा देते कि आई कहाँ से है ये वो। नौफ़िल की बातों को ताज्जुब से देखने लगी। नौफ़िल ऐसा सोचते हो तुम? अफ़सोस हो रहा है मुझे तुम्हारी सोच पर। खबरदार जो कभी इसे इसके घर का ताना भी दिया तो वो कहाँ से आई है ये बात अब बेमायनी है, क्योंकि अब वो तुम्हारी बीवी है, इसकी हैसियत तुमसे है। अब सिर्फ़ इसे मोहब्बत की ख्वाहिश है। लड़कियाँ बहुत से ख्वाब सजाकर ससुराल आती हैं, शौहर के हवाले ढेरों ख्वाहिशात दिल में होती है, और अगर तुम इसे लेकर अपनी फैमिली के किस्से सुनाने बैठ जाओगे तो इसका रवैया ऐसा ही होना था। मायरा की बात नौफ़िल ने चुपचाप सुनी थी। वो चीज़ नहीं कहा था कि थोड़ा सख्त लहजे में बात करना, और ऑफ़िस के चंद दोस्तों ने भी यही कहा था कि रूप में रखना। नौफ़िल के ने नज़रें चुराते इतराफ़ किया था। मायरा ने हैरत से इसे देखा। नहायत ही दक़ानूसी सोच है ये, पहली मुलाकात में बीवी को ही बताना कि मैं गब्बर सिंह हूँ। 1 हफ्ते की छुट्टी है तुम्हारे ऑफ़िस से, अब तो इसे तुम इस्लामाबाद और मरी ले जाओ, कुछ घूम फिर लेंगे, एन्जॉय करोगे तो मिज़ाज पे अच्छा-सा पड़ेगा तुम दोनों के। मायरा का मशवरा इसे ख़ास पसंद नहीं आया था। ठीक है, ले जाता हूँ, लेकिन आप और बच्चे भी साथ जाएँगे? नौफ़िल अब भी अपनी बात को मुकद्दम रख रहा था। मैं और बच्चे नहीं जाएँगे नौफ़िल, मायरा ने साफ़ इनकार किया था, और मैं आप लोगों को अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगा। कराची में कम सैरगाहें तो नहीं है ना, यहाँ भी सैर व तफरीह हो सकती है। नौफ़िल ने जैसे जान छुड़वाना चाही थी। मेरी बात अगर तुम्हारे नज़दीक अहमियत रखती है तो तुम टालोगे नहीं, सिर्फ़ तुम दोनों जाओगे। भाभी मैं और आपको और बच्चों को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, 1 दिन के लिए भी नहीं। नौफ़िल ने हतमी फ़ैसला सुनाया है। मैं अकेली नहीं हूँ, यहाँ खाला है पड़ोस में, चंद दिन की बात है, दिन भर वो रह लेंगी, रात को मैं मुलाज़िमा को पास रख लूँगी, फिर सामने अनिला भाभी भी है, शम्स भाई है, यहाँ सब अपने ही तो हैं नौफ़िल। मायरा ने इसे कायल करने की कोशिश की, फिर भी भाभी इसकी दिल फिर भी मुतमईन नहीं था। बस तुम इनकार नहीं करोगे, ज़ुनैरा को भी मैं कुछ देर के लिए बुला लूँगी, वरना आफ़रीन से कह दूँगी वो 2 दिन तो आकर रुक जाएगी, वक़्त गुज़रने का पता भी नहीं चलेगा। मायरा की पूरी बात सुनकर वो चुप सा हो गया था। अम्मार वाले वाक़ये के बाद वो अंदर से खुद से भी डर गया था। अकेला मायरा को छोड़ने को दिल नहीं मान रहा था, लेकिन बोला कुछ नहीं। अच्छा सोचूँगा, फ़िलहाल तो मुझे कार्टून देखने दें। मायरा से बात ख़त्म करके आयज़ा की तरफ मुतवज्जा हुआ। आयज़ा ये तुमने फिर से नोबिता लगा लिए, चलो टॉम एंड जेरी दिखाओ, बल्कि मुझे रिमोट दो। नौफ़िल को मायरा से बातों में मसरूफ़ देखकर आयज़ा अपनी पसंद के कार्टून लगा चुकी थी। नौफ़िल ने इसके हाथ से रिमोट लेकर चैनल चेंज किया और वॉल्यूम ऊँचा किया था। पता नहीं कब बड़े होगे तुम। मायरा ने इसे वैसे ही बेनियाज़ सा देखा तो मुतअस्सिफ़ सी होकर वहाँ से उठी थी। लग रहा था जितना कुछ नौफ़िल को समझाया इसने एक कान से सुनकर उड़ा दिया है। शीज़ा चुप सी हो गई थी, गुमसुम बैठी रहती थी। अदरा बेगम जितना इसे बहलाने की कोशिश करती, वो भूत तक नहीं देखती रहती, वो दीवार तक वो भूत तक इन्हें देखती रहती। बात दिन से माँ के घर में थी। इरफ़ान की एक कॉल तक नहीं आई थी। बच्चे का सुनकर वैसा चुप हुआ था, एक लफ्ज़ भी नहीं बोला था। ये जूस पी लिया शिता, नाज़रा बेगम ने इसके लबों पे जूस का गिलास लगाते हुए कहा। टप टप आंसू इसकी आंखों से बहने लगे। अम्मी मेरा कसूर क्या था, इसने जूस का गिलास पीछे किया। मैंने कहाँ गलती की थी, मुझे इतनी बड़ी सज़ा क्यों मिल गई। अम्मी वो रोने लगी थी। अज़रा बेगम के अपने आंसू नहीं रुक रहे थे। मैंने तो यही कोशिश की थी कि मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे। मैं तो कभी ज़बान से भी शिकवा नहीं किया इसे किसी की और चाहती। अगर मैं डट जाती तो शायद चचा इसे मजबूर कर देते मुझसे शादी करने पर, लेकिन मैं
में बीच से हट गए। क्यों दो दिलों के बीच में आती, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ अम्मी? ना इरफान की मोहब्बत मिली, ना ससुराल की, अब ज़िंदगी भर की बेऔलादी। ये सारे खसारे मेरे लिए ही क्यों? वो हिचकियों से रो रही थी। आज सारी बात फिर से याद आने लगी थी, हर अज़ियत जिसे नए सिरे से तकलीफ़ देने लगी थी। अतरा बेगम भी चुप थी, बेटी को किन अल्फाजों से तसल्ली देती। ज़ियान को अफ़ीरा का सजा-संवरा रूप देखकर लग नहीं रहा था कि इसके साथ ज़बरदस्ती की गई है। ना मुतारिम आँखें थीं, ना ही कोई मलाल, वो तो बहुत खुश और बशाश सी लग रही थी। किसी का गम हल्का-सा शबा तक इसके चेहरे पर नज़र नहीं आ रहा था। हाँ, बोलो क्या कहना तुम्हें? क्यों रोज़-रोज़ चले आते हो यहाँ वलवला मचाने? अफ़ीरा का अजनबी-सा लहज़ा और बेगानी ज़बान ज़ियान मुतहिर हुआ था। इसके करीब आकर बोला, अभी चलो मेरे साथ, तुम्हारे मियाँ के मुँह पर पैसे मारता हूँ, तलाक लो इससे और जान छुड़ाओ अपनी। ज़ियान की बात अफ़ीरा ने बेगानगी से नज़रें फेरी थीं। अम्मा ने झूठ बोला था तुमसे, ये शादी मैंने अपनी मर्ज़ी से की है। एक धमाका था ज़ियान के असाब पर हुआ था। अपनी मर्ज़ी से वो हैरत से हलक के बल चिल्लाया था। मुझसे मोहब्बत करते हुए मेरी मंगेतर होगा, तुम कैसे किसी और के बारे में सोच सकती थी? ज़ियान अब गुस्से से इसे देखता हुआ बोला, जैसे तुम अपनी गर्दन से बचपन से मनसूब होते हुए इसे मंगनी की अंगूठी पहनाने के बावजूद मेरे बारे में सोच सकते थे। बिल्कुल वैसे ही मैंने भी सोच लिया। ज़िल्लत का थप्पड़ कैसे मुँह पर पड़ता है, ये ज़ियान को अब समझ आ रहा था। अफ़ीरा, हमने चाहा है एक-दूसरे को, और इनकार तुम्हारी वजह से ही किया था मैंने। ये चाहत, मोहब्बत सब किताबी बातें ज़ियान किताबों में ही अच्छी लगती है। बात सिर्फ़ इतनी सी है, इंसान हमेशा बेहतर से बेहतरीन की तरफ लपकता है। मैं तुम्हें शिज़ा से बेहतर लगी, इसलिए तुमने इसे छोड़ दिया। मुझे मेरा शौहर तुमसे बेहतर लगा, मैंने तुम्हें छोड़ दिया। वो लापरवाही से कंधे उचकाकर बोली। ज़ियान इसे देखता रह गया था। 5 साल की मोहब्बत भुलाना इतना आसान था तुम्हारे लिए अफ़ीरा? ज़ियान को अब यकीन नहीं आ रहा था। वो ताज्जुब से उसे देख रहा था जो बेपरवाह थी। ये सवाल मैं भी कर सकती हूँ, मंगनी तो तुम्हारी भी शिज़ा से एक अरसा रही है। अच्छा, तो तुम ये समझ रही हो कि तुम मुझे धोखा दोगे और मैं चुप रहूँगा? नहीं, ज़िंदगी जहन्नुम बना दूँगा तुम्हारी। वो गर्रा कर बोला। हाँ, तो जाओ, जो करना है करो, लेकिन याद रखना ज़ियान, मैं औरत हूँ। 4 आँसू बहाकर खुद को सच्चा साबित कर लूँगी, लेकिन तुम्हारे साथ जो होगा वो दुनिया देखेगी। तुम पर तुम्हारी कज़न का नाम लेकर वो इल्ज़ाम लगाऊँगी कि पनाह माँगोगे मुझसे। ना अफ़ीरा को खौफ था, ना किसी की इज़्ज़त का। पास ज़ियान से सुन चुकी थी शिज़ा के ससुराल वाले कैसे मिज़ाज के हैं, इसलिए चापलूसी की धमकी दी थी। ज़ियान कुछ देर इसे बेयकीनी से देखता रहा, फिर घर से निकल गया। दिलो-दिमाग की मानने को तैयार ही नहीं था कि ज़फ़ीरा का ये रूप भी होगा। कैसे मीठे लहज़े अपनाए थे, इससे चीज़ें बटोरती रही थी। दिलो-दिमाग में अफ़ीरा की बातें हथौड़े की तरह लग रही थी। बाइक घर के सामने खड़ी करके बड़ा शिकस्ता पा होकर घर पहुँचा था। रात को नौफ़िल इसे लेने इसके घर पहुँच गया था। कुछ देर ही में वो आफ्ताब बेगम के घर बैठा था। अकमल साहब ने खाने पर बहुत इसरार किया, लेकिन इसने इनकार कर दिया। गाड़ी में बैठते ही नौफ़िल को मायरा की बातें याद आई थी। इसे लगा शायद गलती इसी ने की है, इसलिए अपना रवैया बदल लेना चाहिए। सुनो, आइसक्रीम खाओगी? नौफ़िल ने बात की इब्तिदा की। अफ़ीरा जो खिड़की से बाहर देख रही थी, नौफ़िल की तरफ देखने लगी। ये भी कोई पूछने की बात है? ज़ाहिर है ज़रूर खाऊँगी। नौफ़िल ने गाड़ी आइसक्रीम पार्लर के सामने खड़ी की। आइसक्रीम खाते हुए इसे हल्की-फुल्की बातचीत करता रहा। वापसी में मायरा और बच्चों के लिए भी आइसक्रीम पैक करवाई थी। आज खूबसूरत लग रही हो, नौफ़िल ने एक बार फिर भरपूर नज़र इस पर डालकर तारीफ़ करने की कोशिश की। आज लग रही हूँ, क्या मतलब मैं खूबसूरत हूँ? वही खुदपसंदी जो अफ़ीरा के मिज़ाज का हिस्सा थी। अच्छा, नौफ़िल ने दोबारा से इसे ताज्जुब और गौर से देखा। वैसे आपस की बात है, तुमने हुस्न शायद सिर्फ़ अपने घर के आईने में ही देखा है, इसलिए बस इतनी ही मालूमात रखती हो, वरना इतनी खुशफ़हम ना होती। नौफ़िल की बात पर इसने ख़फ़ीसे से देखा। वो हँसने लगा। मज़ाक कर रहा हूँ, इतनी ख़तरनाक नज़रों से मत देखो, सामने वाला कमज़ोर दिल का मालिक भी हो सकता है। नौफ़िल की बातें से अबरू चढ़ाए थे, फिर तो दिल को मज़बूत कर लें तो बेहतर है, क्योंकि कमज़ोर दिल वालों पर बड़ा ख़तरनाक वार करती हूँ मैं। अफ़ीरा का दो बुदू जवाब देना इसे बुरा नहीं लग रहा था, वो मुस्कुराया था। अच्छा, वैसे हम दोस्त भी बन सकते हैं, क्या ख़्याल है? नौफ़िल ने मौज़ू बदला था। सोच लें, मेरी दोस्ती बहुत महँगी भी पड़ सकती है, कभी हल्की चीज़ पर हाथ नहीं रखा मैंने। अफ़ीरा ने अपनी आदत बताई थी, और मैं जिस चीज़ पर हाथ रख दूँ, इसे कीमती बना देता हूँ, मेरे छूने से पहले, चाहे वो बेमोल ही क्यों ना हो। जवाब वो भी इसे टक्कर के दे रहा था, लेकिन लहज़ा मुतवाज़िन था। कल की इस्लामाबाद की टिकटें मैंने बुक करवा दी हैं, इसलिए खुद पर जितना भी नाज़ करना चाहो कर सकती हो कि नौफ़िल ने अपने कीमती वक़्त में 1 हफ़्ता तुम्हारे नाम करने का इरादा किया है।
अफीरा के लिए बस यही अहम था कि पहली बार जहाज़ का सफ़र वो करेगी भी इस्लामाबाद और मरी जैसे खूबसूरत शहर को देखेगी। ये एहसास हर चीज़ पर हावी हो चुका था, इसलिए पिछली सारी बातें भुलाकर वो एकदम से अपने अंदाज़ बदल गई थी। आप सच कह रहे हैं, हम कल जहाज़ में जाएँगे? लहजे में मिठास सी भर गई थी। इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है? तैयारी कर लेना, कल शाम की फ्लाइट है। घर के सामने इसने गाड़ी खड़ी की थी। अफीरा की खुशी काबिल दीद थी।